فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا، آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، دو جگ کے مختار۔ الحمدللہ آج جو ہے مدنی مذاکرے میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا، اور علم دین میں آج جو ہے وراثت کا ٹاپک ڈسکس ہوا، وراثت کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں یہ ہوا، اور یہ سیکھنے کے بعد الحمدللہ جذبہ یہی تھا کہ ہم علم دین سیکھیں۔ یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور چھوٹے سے شفقت اور بڑے سے محبت کرنا سیکھا ہے، اور نماز کی پابندی کرنا خصوصی سیکھا ہے۔ خاص نیت یہی تھی کہ علم دین حاصل کرنا ہے، پہلے بھی آیا تھا محرم میں، اسی محرم میں، ابھی بھی انشاءاللہ وہی نیت ہے کہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اگر ملاقات نہیں ہوگی تو پھر بھی بار بار آئیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ نیت انشاءاللہ ہے ربیع الاول کے بعد 12 مدنی کورسز سے ایک کورس انشاءاللہ کروں گا۔ آج انہوں نے کہا کہ میں کدی بھی انج دا جذبہ نہیں ویکھیا، یہ انج دا جذبہ 1500 سالہ جشن ولادت دے جڑا جذبہ ہے نا، انج دا میں نہیں کدی ویکھیا۔ انشاءاللہ اسی بھی اتھوں یہی جذبہ لے کے جا رہے ہیں، اسی بھی انشاءاللہ عز و جل اسی بھی چونکا جے درس کرانگے، سرکار دی آمد مرحبا مصطفیٰ دے نعرے لواواں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تقریباً 24 گھنٹے کا سفر تھا جو ہم بہت تھکاوٹ تھی، یہاں آئے تو منظر دیکھا تو ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے، اور ماشاءاللہ جو نظام دیکھا یہاں کا بہت سکون ملا۔ بہت جگہ پر گیا مجھے سکون نہیں ملا، جو یہاں سکون ملا ہے بہت زبردست ہے۔ اللہ پاک ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھے۔ میرا موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں 13 سال سے مطلب گھر پہ ہی ہوں، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آتے، اور پیر صاحب کو دیکھ کے اکیلا ہی آیا ہوں میں، کسی کے ساتھ نہیں آیا، بس یہ پتہ چلا کہ انہوں نے بلایا ہے بہاولپور والوں کو، اور میں پھر وہاں سے آ رہا ہوں۔ جب ہمیں اس وقت جب باپا نے فوراً اعلان کیا ہے، خوشی سی ہوئی، اور آج بھی باپا نے اعلان کیا کہ یہ 4 بچے جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں انہیں عیدی اور نقشِ نرانے مبارک ملے گا، بہت زیادہ خوشی۔ مدینے کی یاد میں رونا ہمیں یہاں سے ملا ہے، مدینے کی یاد میں بلکنا اور حاضری کے لیے تمنا کرنا وہ امیر علیہ سنت کی ذات سے ہمیں ملا ہے۔ بالخصوص حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے، یہ ان کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنا، یہ منفرد انداز ہے اور یہ بہت ہی زبردست ہے۔ روزانہ 1500 دفعہ درود پاک ہوگا، اور 750 دفعہ باپا کی اصالِ ثواب کروں گا، 750 کا ثواب خود رکھوں گا۔ اس سے پہلے گھر میں ہوتا تھا جو چیز مجھے کوئی لا کر دے، مطلب کہ جیسے میں نے انہیں کہا پانی پلا دیں آپ، تو انہوں نے مجھے پانی پلایا، تو میری یہ مطلب کہ یہ نہیں ہوتی میں جزاک اللہ کہوں۔ اب میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تو میری زبان سے نکلتا ہے، جب بھی مجھے کوئی کام میرا کر کے دیتا ہے جزاک اللہ میرے زبان سے ضرور نکلتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی تیسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تاثرات برنگا رنگ، اس میں بچوں کے تاثرات ماشاءاللہ بڑے یونک۔ پھر اس بچے نے وہ 1500 درود شریف پڑھیں گے روز، یہ نیت کی ہے، آدھے مجھے دیں گے آدھے اپنے لیے رکھیں گے، اصالِ ثواب۔ تو بچے ہوتے ہیں نا، کہیں بڑوں کو یوں نہ ہو جائے کہ ہم بھی یوں کریں۔
तो पूरे ही दे दें मुझे इसाले सवाब। आपका जाएगा नहीं, आपका डबल हो जाएगा। हाँ डबल, यानी अगर हम पढ़कर, जैसे हमने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा और किसी को इसाले सवाब कर दिया ख़ास, तो उसको तो मिलेगा एक दुरूद शरीफ का। अब इसको हम नहीं, हमारा गया नहीं, हमारे पास तो रहेगा हमारा। इसको देने की वजह से अब ये कि हमारा इसकी वजह से भी एक और बढ़ जाएगा। तो यूँ हमने जैसे दो शरीफ पढ़े, 2 दुरूद पाक पढ़े, इतना सवाब हो जाएगा। तो 1500 पूरे दे देंगे तो हमारे 3000 हो जाएंगे किसी एक को, और अगर 1-2 को देंगे तो फिर और बढ़ जाएंगे, 45,000 हो जाएंगे। 3 को करेंगे तो और बड़ा अला हाज़ल क़ियास। तो जितनों को इसाले सवाब करेंगे ना, उतनों की गिनती के बराबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसाले सवाब में बुख्ल ना किया जाए, खूब दिल खोल के सारी उम्मत को इसाले सवाब करते रहें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी सबसे पहले तो नज़र करना है, तो नीयत करनी, ये भी काफ़ी है कि हमने इसाले सवाब जो ये पढ़ा तो वो इसका सवाब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे, फिर सरकार के सदक़े में सारी उम्मत को पहुँचे, ये भी काफ़ी है। नाम लेंगे किसी का तो वो भी सही है, साथ साथ में किसको भी पहुँचे, उसको भी पहुँचे, सारी उम्मत को पहुँचे सवाब। इसाले सवाब मुश्किल काम नहीं है, हम लोग बस करते नहीं हैं, बहुत आसान है। नेकियां बढ़ाने की मशीन है इसाले सवाब, तो यूँ समझ लो इतनी बढ़ जाती नेकियां। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे की नीयतें तो अच्छी अच्छी आपने हो सकता की हो, मज़ीद ये चाहें तो बढ़ा लें। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर इन्हें फैल कर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम तक अपनी जगह पर ही रहूंगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम व मुसाफ़हा करने और आइंदा भी आते रहने की दावत देकर सवाब का हकदार बनूंगा। वो जैसा मौका उस तरह के मुताबिक इनफरादी कोशिश नेकी की दावत की तरकीब करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखो मैंने इसमें ये नियत ये कराई है, सलाम व मुसाफ़हा, मुसाफ़हा ने हाथ मिलाना, तो पहले लफ्ज़ सलाम बोला है, लेकिन मैंने कई बार नोट किया कि पहले हाथ मिलाते हैं फिर सलाम करते हैं, ये तरतीब नहीं ठीक। तरतीब ठीक यही है, पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अब हाथ मिलाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, इस वक्त हम कश्ती के जुलूस में हैं और माशाल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल जमा हैं। बहुत सारी नीयतों के साथ साथ हमने आज इमामा शरीफ भी हम लेकर आए हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि ये नीयत करवाएं कि मुस्तकिल पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक या पूरे रबीउल अव्वल के महीने में सर पर इमामा सजाएं, और फिर जो पूरा दिन नहीं सजा सकते थे कम से कम हर नमाज में पहने। तो आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफा पेश करने की नीयत से क्या ये नीयत की जा सकती है कि पहली रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक या पूरे रबीउल अव्वल में इमामा पहनकर भी इस बार 1500वां जश्न विलादत मनाया जाए? ये भी इरशाद फरमाएं कि और क्या क्या तोहफे नबी पाक के लिए हम तैयार करें, क्योंकि इस बार तो स्पेशल डे है। हमारे घर में कोई स्पेशल मौका आता है तो हम ख़ास तैयारी करते हैं कि जनाब 50वीं सालगिरह है तो किसी की शादी की 25वीं सालगिरह होती है तो वो सुना बड़ी तैयारी करते हैं। तो नबी पाक का 1500वां विलादत का दिन ये तो शायद हमें पहली बार ही मिलेगा और आखिरी बार मिलेगा, हम 1600वां जश्न विलादत भी शायद नहीं देख सकेंगे। तो हुजूर फिर इस बार हमें अगर मिल जाए तो हम इस महीने में क्या क्या तैयारी करें, कुछ हमें ऐसे प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमा दें। खुशियां न क्यों मनाए सरकार आज आए, खुशियां न क्यों मनाए सरकार आज आए, फूले न हम समाए सरकार आज आए।
الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کئی اسلامی بھائیوں نے جتنے ہیں انہوں نے تقریباً نئے امامے سجائے ہیں. آپ دعا بھی کر دیں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول بھی عطا فرما دیں. جو امامہ پہن کے نماز پڑھتا ہے تو کیا بغیر امامے کی نماز سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے؟ تاکہ اگر پورا دن وہ امامہ نہ بھی پہن سکے تو وہ نماز کے وقت اگر امامہ پہن لے تو اس کے اجر و ثواب میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، یہ بھی ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ تمام عاشقان رسول کو 1500واں جشن ولادت مبارک. الحمدللہ دل مسرور ہے، خوش ہے. 1500واں جشن ولادت، تو آقا کا جشن ولادت جب آتا ہے تو دل خوش ہی ہوتا ہے. الحمدللہ ایک جیسے نئی تازگی روح کو مل جاتی ہے. الحمدللہ یہ کشتی میں جلوس میلاد سنا تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے، چاند دیکھنے کے نام پر کشتیوں میں گئے تھے اسلام بھائی. وہ جلوس ہی جلوس، مطلب سب کچھ ہوا ہوگا. ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. اب اس میں نیت تو سب سے پہلے تو جو نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے یہ فوراً توبہ کرنی ہے. اس کے لیے چاند کا بھی انتظار نہ کرنا تھا، نہ ربیع الاول شریف کا انتظار کرنا تھا، بلکہ جنہوں نے ابھی تک کہنے کی ترکیب نہیں ہے پابندی کی تو وہ فوراً توبہ کر کے نمازیں شروع کر کے ساتھ میں جو اب تک قضا ہوئی ان کا بھی ذہن بنا لے، توبہ کرے اور قضا بھی جتنا جلدی ہو کرنا ہے. اپنے سر سے بوجھ اتارنا ہے قضا کا، یہ کرنا ہے. پھر یہ کہ خدا نخواستہ گناہوں کی کوئی بعض اوقات پکی عادت ہوتی ہے گناہوں کی. ایسے ہوتے ہیں کہ سلام کے بدلے گالی دیتے ہیں. ایسے معاشرے میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے بالکل ایسے بیچارے بعض ہوتے ہیں جو کچھ بھی سدھ نہیں ہوتی. اللہ کرے ان کو میری بات اگر سن رہے ہیں تو سدھ آ جائے کہ ابتدا مسلمان کی گالی سے نہیں ہے سلام سے ہے. گالی تو وہ ہے کہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے گالی دینا، تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. گالی تو اتنی رچ بس گئی ہے، مجھے یاد آیا کہ وہ جب چھپکلی مارتے ہیں نا تو اس کی دم وہ خود چھوڑ دیتی ہے. ویسے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا، یہ دم چھوڑ دیتی ہے، یہ قدرتی نظام ہے. بر وہ دم چھوڑے گی، دم اب اس کی ہلتی رہے گی. تو جو بھی اس کو مارنا چاہے گا یا دشمن یا جو بھی اس کو کھانا چاہے گا شکار، تو وہ دم کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گی دم چھوڑ کے. جو بہادر نہیں ہو تو دم دبا کے بھاگتے ہیں، یہ دم چھوڑ کے بھاگتی ہے. اچھا تو اب وہ دم یوں مجھے یاد آیا یہ کہ دم ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، لڑک پن کی بات کرتا ہوں بچپن کی، تو یہ بولتے دم کو مارو اس کو، گالیاں دیتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، وہ ہو سکتا ہے نہ بولتے ہوں، ہمارے دور میں بچے بولتے تھے کہ گالی دیتی ہے. تو اتنی گالی مطلب دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی. اب بھی بیٹھی ہوئی بات ساری علت ہے کہ اب بھی کہتے ہیں مطلب گالیاں دیتی ہے. گالیاں نہیں دیتی، آپ کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے کہ مارو مارو گالیاں دیتی ہے. تو اصل بھاگ گیا شکار آپ کا، چھپکلی بھاگ گئی، اس کا کچھ بھی نہیں گیا. جی ہاں وہ دم پھر اگ جاتی ہے، نظام قدرت ہے. تو بعض سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں جیسے کنکھجورا ہوتا نا، اب کنکھجورے کو 2 پیس کر دو تو یہ بعد میں 2 بن جائیں گے، پورے ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ تو اس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں نا، جیسے ٹرین ہوتی ہے دونوں طرف انجن ہوتے ہیں، ٹرین کے دونوں طرف انجن لگتے ہیں. تو ادھر بھی لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے. یہاں آنا ہے تو یہ پوری ٹرن تھوڑی کر سکتی ہے، جس طرح گاڑی ٹرن کرتی ہے، یو ٹرن کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا ٹرن کرتی ہے مگر یوں بل کھاتی ہوئی جاتی ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ اسٹیشن پر آ کر وہ ٹرن نہیں کر سکتی کہ کھڑے کھڑے اب ٹرن کرے گی کہ یہاں جانا ہے. تو یہ مطلب خیر بات پر بات نکلی. تو جو معاذ اللہ گالی کی عادت ہے، تو آج جشن ولادت کی برکت سے اللہ کرے ذہن بن جائے کہ گالی دینی نہیں ہے، زندگی بھر نہیں دینی، 12 دن کے لیے نہیں کہ آئندہ کروں گا یہ اگر نیت کی تو پھر بھی گناہ گار ہے. گناہ کی نیت کر رہا ہے کہ 12 دن نہیں کروں گا، بعد میں تو کرتا رہوں گا. تو آج سے گالی سے توبہ، جھوٹ سے توبہ، غیبت سے توبہ، خدا نہ خواستہ حرام روزی کی ترکیب ہے تو اس سے توبہ. اور جو بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق اللہ تو ادا کرنے ہی کرنے، وہ تو اس کے علاوہ حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں.
की भी अहमियत कम नहीं, बल्कि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, करम फरमाएगा, तो हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं फरमाएगा, उसने बंदों के ऊपर छोड़ दिया। ये बंदे भी उसके हुकूक भी इससे, लेकिन उसने बहरहाल ये बंदों के हुकूक को बड़ी के अहमियत अता फरमाई कि बंदे माफ़ करें। तो ये बड़ा नाजुक मामला है। तो इस तरह करते करते नमाजों की पाबंदी भी, दाढ़ी पूरी रखनी है, दाढ़ी मुंडाना हराम, एक मुट्ठी से घटाना हराम। तो यूँ मतलब अब इमाम शरीफ की बारी भी आएगी। तो इमामा शरीफ अगर 12 दिन के लिए सजाता है तो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि इमामा ना पहनना ये गुनाह नहीं है। पहने तो बेशक सुन्नत है और सवाब का काम है, पहनना चाहिए, और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं कि हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामे के साथ 2 रकात नमाज बग़ैर इमामे की 70 रकातों से अफजल है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम अरब के ताज हैं, तो इमामा बांधो, तुम्हारी बुर्दबारी यानी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होगा, और जो इमामा बांधे उसे हर पेच के बदले एक नेकी अता होगी, और जब दोबारा पहनने के इरादे से उतारे तो हर पेच खोलने पर एक गुनाह मिटा दिया जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को यूँ नकल फरमाते हैं, न बयान कर रहे हैं कि इमाम अरब के ताज हैं, तो इमाम बांधो, तुम्हारा वक़ार बढ़ेगा, और जो इमामा बांधे उसके लिए हर पेच पर एक नेकी है, और जब बिला ज़रूरत या तर्क के कस्द पर उतारे तो हर उतारने पर एक ख़ता है, या जब बज़रूरत बिला कस्द तर्क बल्कि बइरादाए मुआवदत उतारे यादा से, इसलिए कि दोबारा बांधेगा मुआवदत, तो दोबारा ने बज़रूरत बिला कस्द तर्क यानी छोड़ने के इरादे से ना हो बल्कि ज़रूरत से उतारा, और ये भी नीयत है कि इसको दोबारा बांधेगा भी, मुआवदत रिपीट करेगा, तो अब उतारने पर हर पेज उतारने पर एक गुना उतरे। यानी बिला ज़रूरत या तर्क के कस्द पर, ज़रूरत के बगैर या छोड़ने की नीयत से कि अब उतार रहा हूँ नहीं पहनना, तो हर उतारने पर एक ख़ता है, ये भी लिखा है। तो ये 12 दिन वाला फिर रिस्क हो गया ना, इस नीयत से पढ़ी कि 12 दिन के बाद तो नहीं पहनूंगा। तो यहाँ ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये ख़ता है, ये लिखा है, हर उतारने पर एक ख़ता। फतह रज़विया जिल्द 6 पेज नंबर 214। यानी जब दोबारा बांधने के इरादे से ज़रूरत की बिना पर इमाम शरीफ उतारे तो हर पेज खोलने पर एक गुनाह मुआफ़ किया जाए। तो बहरहाल ये कि 12 दिन के लिए ना पहने, अगर ज़हन बनता है तो पहने, और मुस्तकिल बस अब मैं पहनता रहूँगा इंशाअल्लाह। इस नियत करेंगे ज़हन बन जाएगा। पहले मुआशरे में इमामा तो नहीं था, इमाम साहिबान जो थे वो एक रुमाल, मुझे पता है ना, रुमाल लपेटते थे, और वो भी जमात के टाइम पर। इमामा भी वो जो बाकायदा जो मिक़दार है उसका भी कोई हिसाब किताब होता नहीं था, रुमाल लपेट लेते थे और ये नमाज पढ़ा कर भी उसको उतार कर रख देते थे। ये बड़े बूढ़े जो है ना मेरी तायद करेंगे कि पहले मस्जिदों में ये था, अब भी कहीं कहीं होगा, हो सकता है बहुत जगह हो, ये भी हो सकता है। तो ये मतलब अल्लाह की रहमत है कि इस इमामा शरीफ की सुन्नत को दावत इस्लामी ने बड़ा आम किया है, बहुत आम किया है, अल्लाह की रहमत से बहुत आम किया है। बच्चे बच्चे के सर पर इमामत सजा दिया है दावत इस्लामी ने, अल्लाह की रहमत से। तो अब ये कि इमामा शरीफ बांधें और ज़रूर बांधें, आका की सुन्नत समझ कर बांधें। जब सब बांधेंगे ना तो फिर कोई शर्म व झिझक का भी हिसाब किताब रहता नहीं है। और दाढ़ी ये वाजिब है, ये मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना ये हराम है। तो माशाअल्लाह ये कि इन्होंने इमामे बांधे। अब मैं अपना मशवरा दूंगा, क्या फरमाएं, मुझे बार बार इन्होंने पूछा है। तो इसमें यह कि मैंने अगर एहतियात कहूँ तो करूँगा कि मैंने लाखों को बांधे, मैं नहीं कहता,
हज़ारों को तो बांधे होंगे। अच्छा, अब पहले तो ये होता था कि इस्लामी भाई मुझे देते थे और मैं बांध देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट किया कि इनको मुफ्त का बांध के देते ना। अब शेव्ड है, पेंट शर्ट वाला है, समझे, अब ये इमामा बांध रहा है, इससे आप कैसे तवक्को रखेंगे कि ये इस शेप में अपने इमामे के साथ रहेगा। दाढ़ी भी नहीं रखी बेचारे ने, या छोटी सी दाढ़ी है, तो ये अपना 1500 का कपड़ा ले गया, वो ये समझो इसको गिफ्ट मिल गई, काम आएगा। अनजाने अनजाने होते तो पहले ये करते थे, इस्लामी भाई पकड़ पकड़ के लाते थे। अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सबको बना करना शुरू किया, यार नहीं, फिर ये कि अपना लाओ तो बांधो, इस तरह भी मैंने कुछ कोशिशें की हैं मुझसे बंधवाने के लिए। तो फिर मैंने फिर चेक करना शुरू किया, मैंने नया लाए ना तो मैं बांधूंगा, पैकेट वाला नया खरीद के, वरना क्या करते थे, तुम्हारा ले लिया आके बंधवा लिया, वापस दे दिया, इस मैंने मेरे करीब आएगा, 2 मिनट बातचीत का मौका मिला तो बातचीत कर लेगा, वगैरह वगैरह। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये कि अब मेरा जहन ये कि इनको इमामा तो तोहफे में किसी को देना नहीं चाहिए। हाँ, जो पहनता है ना, पता है पहनता है और अपने देना चाहे तो वो अलग बात है। ब्रांड न्यू बिल्कुल अब आ गया, उसको यार नमाज तो पढ़ाओ यार, पहले नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। पहले लाइन में लगकर इस्लामी भाई आते थे लेकर, तो यूं करते थे, मेरे इशारे करते थे ना, बड़ा मतलब कला फतह करके आते थे, किसी को रंग रूट को लेकर इसको दाढ़ी रखवाओ, इमामा बांधो। फिर मैंने कहना शुरू किया, इसको नमाज तो पढ़ाओ यार, पता नहीं नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता यार, तो ये फिर हमारी गली से भी नहीं गुजरेगा। अगर तोहफे में इमामा लेंगे तो ये कपड़ा तो काम आ जाएगा, लेकिन यार इसको मतलब ये कैसे बांधेगा इमामा। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, शेव्ड है, पेंट शर्ट और बिल्कुल माहौल में नहीं है, तो यार इमामा बांधना वो भी चंद लम्हों के लिए, ये तो हमारी मंजिल नहीं है, मंजिल तो हमारी दूर है ना। तो इमामे की बारी भी आएगी, आते आएगी, समझे। अब केजी नर्सरी के तालिब इल्म को आप बीए और एमए और ये एमफिल क्या क्या करवाना शुरू कर दोगे तो भाग जाएगा, खोपड़ी में बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए बतदरीज, तो सबसे पहले हम नमाज की बात करें, ये सबकी समझ में आएगा और कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करेगा। फिर अच्छा, इमामा बांधा, आपने बंधवा दिया, उसने मुरुवत में बांध लिया, आप कुछ नहीं बोलेंगे, 2-4 और भी तो देख रहे थे ना इसको, अरे यार आपने तो इमामा बांधा था, वो क्या हुआ, अरे यार आपने तो बड़े जोश में कहा था मैं हमेशा बांधूंगा इमामा, आपने तो नहीं बांधा इमामा। नतीजा क्या होगा कि ये बंदा मस्जिद से भी गया, क्योंकि उसको शर्म आएगी कि यार मुझे ये लोग पकड़ेंगे, मौलाना लोग, कि तुम्हारा इमाम कहाँ गया, तुमने तो वादा किया था इमामा नहीं बांधा। तो इतनी अक्ल सब में होती नहीं है, तो उसको फिर भगा देंगे, घर छोड़ के आ जाएंगे, इमामा बांध तो मस्जिद में दाखिला, वरना नहीं। तो इसलिए मौके की मुनासबत से हो दाढ़ी रखवाना, इमामा बांधना, ये हर एक मतलब मजबूर ना किया जाए। एक बार मुझे कोई मतलब मिला था, वो कोई अखबार का मालिकान में से उसका शेर था, मशहूर अखबार था और चलने वाला अखबार था, काफ़ी साल हो गए, तो अब तो पता नहीं वो होगा जिंदा या नहीं, वो आदमी होगा तो भी ये सुन रहा हो, ये ज़रूरी नहीं है, सुन रहा हो तो शायद ये बोलेगा यार मैंने बोला था इसको। तो खैर मैंने उसको इज्तिमा की दावत दी, शेव्ड था बिल्कुल नॉर्मल, अच्छी तरह मिला होगा मुझसे, तो मैंने दावत दी उसको। जब ये मेरे आवाम में मैं भी घूमता फिरता था, उस दौर की बात कर रहा हूँ, तो इसने बोला कि मैं तो आपके इज्तिमा में नहीं आ सकता था, थोड़ा बोलने वाला, यार आओ ना, बोला मैं आया था, आपने दाढ़ी का बोला दाढ़ी रखो, तो अब एक इधर से मुझे खींचता है कि उधर से बोलता है हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, दाढ़ी की नियत करो। बोला यार हम लोग, हमारा धंधे ये, हमारे काम, हमारा माहौल ये, यार हम दाढ़ी कैसे रखें यार, तुम हमारे पास आए, हम तुम्हारे पास आए कैसे, तो खींच के दाढ़ी निकालते हमारी, दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो दाढ़ी रखो। तो एक ये बदजन होने की वजह बताई उसने, और छूट था ना मुंह का, मैं नहीं आऊँगा आपके इज्तिमा में। अच्छा, दूसरी वजह ये बताई कि यार अब बात हुई नहीं हुई, सुना नहीं सुना, नारे नारे नारे, समझे। तो बोला यार ये क्या है, मतलब यार पहले इस तरह के माहौल से गुजरे हम लोग। अब भी ये पंजाब के शेर जो है ना, ये खाली नारे के शेर है, समझे, काम के शेर भी हैं, नारे के शेर भी हैं, ये नारे बहुत लगाते हैं। ये भी समझा कर बहुत सो तो कंट्रोल किया, यार नारा लगाने का मौका होता है यार,
बात बात में नारा तो नया आदमी अनजान, वो फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट एंड लास्ट गया ना। अच्छा ये तो चलो इत्तेफाक से मुझे मिल गया, उसने बड़ास निकाली और मैंने दावत दी। तो आप बताइए कि आप कितनों को भगा देते हैं, कितनों को भगा देते होंगे इस तरह नारे लगाकर, दाढ़ियाँ रखवाकर। इमाम अभी जिनको बांध के दिया ना इन लोगों ने, ये मेरे ख्याल में कई मतलब हो सकता है भाग जाएंगे, कि लोग इनको पकड़ेंगे जिन्होंने जो थे ना। ऐसा नहीं बांधते इमाम, यकीन माने मुझे इतना तजर्बा इसका, तो इतना तजर्बा इमाम बांधने का कि नहीं बांधते इमाम। यार मुआशरा बहुत बिगड़ा हुआ है, पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। हाँ बोलेंगे कि मौलाना को ना बोलूँगा तो फजाइल सुनाएगा, मुझे शर्मिंदा करेगा। हम नहीं बांध सकते, दुनियादार लोग हैं हम। यार दाढ़ी नहीं रख सकते यार, हम पेंट शर्ट नहीं छोड़ सकते, हम ये इस गेटअप को नहीं, मतलब हमको दफ्तर में कोई घुसने भी नहीं देगा इस गेटअप के साथ। तो अब यार उसको आने तो दो यार, तो नमाजी बनाओ ना आप यार। जब आएगा तो ये सब भी कर लेगा। एकदम से आप मतलब ऊपर से एमए का कोर्स और इसको मतलब डॉक्टरेट करवाना शुरू कर देंगे तो कहाँ यार वो करेगा, बतदरीज। तो ये हमारे यहाँ कमजोरी है। मैं कई बार इस तरह की बातें समझाता रहता हूँ। आइए ये तरबियती कोर्स है पूरा, समझो कि किस तरह काम करना चाहिए। तो इस तरह अब डायरेक्ट आप बोलो टीवी में म्यूजिक है, ये है, टीवी मत देखा करो, हराम है, गुनाह है, सही बात है। अब एक नया आदमी मिला है, ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है बेचारे को, तो अभी आप समझाना शुरू करें तो यहाँ बोलेगा नहीं देखूंगा टीवी, और दिल में बोलेगा अब तुमको नहीं देखूंगा, कभी देख लिया तो गली बदल दूंगा। तो इसलिए वो दीन की तबलीग, नेकी की दावत, ये अगले की नफ्सियात के मुताबिक देनी चाहिए। जैसा माहौल, एक तो जनरल बात कर दी ना हमने कि टीवी गुनाह वाला, टीवी नहीं देखो, ये तो जनरल बात हुई। एक को हम समझाएंगे वो शर्म से पानी पानी होता जाएगा या बहस करता चला जाएगा, और हम उसको अपने जो भी लूले लंगड़े दलाल देते रहेंगे, वो मजीद बदजन होता रहेगा। तो इसलिए ऐसा ना करें। अब किसी को इमामा बांध दिया, दाढ़ी आपने रखवा भी ली, उसने नहीं रखी, तो आप अनजान हो जाए करें। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं एक बार मतलब किसी को दाढ़ी रखवाई थी, हाँ बिल्कुल वादे कर लिए उसने। फिर मैंने देखा यहाँ एक जब ज़ेर तामीर था फैज़ान मदीना, तो खड़ा हुआ था सीढ़ी पे। मैं जब आया ना इज्तिमा के लिए, तो सिक्योरिटी इशू नहीं था उस वक्त, मेरा पुरानी बात है, तो ये खड़ा हुआ था। तो मैंने दुआ सलाम अपने हिसाब से जो करके मुझे समझ तो गया था कि वही साहब है। तो इन्होंने किसी और को कहा कि यार लगता है ये भूल गए, दाढ़ी मैंने यार वादा किया था, मैं फंस गया था, मैं पकड़ा गया था जैसे। तो इन्होंने तो मतलब भूल गए। मैं भूला नहीं था, मेरी हिकमत अमली थी कि अब ये दाढ़ी न रखने के बावजूद यहाँ सीढ़ी पे खड़ा हुआ है मस्जिद के, अब जो बोलूँगा ना तो भी मस्जिद में मुझे नज़र नहीं आएगा, शायद ये भाग जाएगा। तो इसे मैंने कुछ नहीं बोला। आखिरकार इतनी बड़ी दाढ़ी मैं उसको कई बार देखा मैंने, आता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता तरकीब बन गई। तो इसलिए मतलब हमारे बस में नहीं है ना कि अभी हम सारी मंजिलें तय करवा लें, विलायत के आखिरी दर्जे पर पहुंचा दें उनको। नबूवत तो दिला नहीं सकते क्योंकि नबी तो अब कोई नया आ ही नहीं सकता, विलायत का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो भाई अभी सारे आप मंजिलें तय ना करवाएं, अभी इसको आने दें और आप नमाज से चलें, नमाज से चले। अल्लाह करेगा नमाज पढ़ेगा, दुरुस्त नमाज पढ़ेगा, इसकी नमाज दुरुस्त करें, इसको कुरान करीम पढ़ना सिखाएं, इसको ये ऑफ़र करें हम आपको सिखाएंगे, या आप मदरसतुल मदीना बालिगान में तशरीफ़ लाएँ, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको कुरान सिखाया जाएगा, कोई मुसलमान से इख्तिलाफ नहीं करेगा, समझे। तो वो आप भी जाते हैं, ये मदरसतुल मदीना बालिगान जो है ना, ये दावत इस्लामी की तरक्की का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है, समझे। शुरू में ये बहुत मतलब है ना कि इसके ज़रिए हमको इस्लामी भाई समझो मिलते रहे, अब भी मिलते होंगे। तो ये जो करने के, इसमें भी किसी के पीछे मत पड़ा करो, जिसको मतलब कंबल बन गए, नमाज के लिए क्यों नहीं आए, फजर में क्यों नहीं उठे, अब जमात में क्यों नहीं आए, पहली सब में क्यों नहीं था, आखिर में खड़े हुए थे, असर में कहाँ थे, इशा में सो गए थे क्या। ऐसा करोगे ना तो फिर वो नहीं आएगा। एक बार बोल दिया, दो बार, मगर नरमी से नमाज की दावत। तो इस तरह मतलब हिकमत अमली से काम करोगे ना तो इंशाअल्लाह काम करेगा, काम उड़ेगा, चलेगा नहीं उड़ेगा इंशाअल्लाह मदीने की जानिब। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई इमाम के फ़ज़ाइल की तरकीब थी, इमाम में बहुत सारों को बांध कर या कुछ अफराद को मुझे दिखाया गया और आप मदनी फूल दें।
छोटी छोटी दाढ़ी, मतलब आवाम। चलो कपड़ा तो मिल ही गया, कपड़ा भी महंगा हो गया यार, इसमें कितने कितने का होता है आजकल, इमामा भी महंगा हो गया यार, 1000 से भी ऊपर चला गया। तो सबको मतलब खैर अल्लाह करेगा तो पहनेंगे, बांधेंगे। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैंने हज़ारों लाखों को बांधे हैं, समझो लाखों में एहतियातन नहीं कहता, हज़ारों को तो बांधे होंगे इमाम है। लेकिन अपना दर्द मैंने बयान किया कि इस तरह नमाजी बनाओ ना यार, इमामा भी बांध लेंगे यार, जुल्फे भी रख लेंगे, दाढ़ी भी बढ़ा लेंगे, पहले नमाज से हम चले ना, मिठा मदीना मक्का मदीना बकी बकी हो जाएगा इंशाअल्लाह। दीन फैला ही हिकमत से, तो ठोकरें खाकर ही संभलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। पहले हम भी अपने अंदाज से काम करते थे, जो सुजका पड़ता था, आहिस्ता 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 खुद आवाम हमको सिखाते रहे कि ये टूट के भागा, ये दौड़ के निकला, तो समझ आ जाती है कि इसको ये कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, हमने ये बोल दिया था, हमारे मुंह से वो निकला था तो इसको हजम नहीं हुआ। तो आहिस्ता 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 मतलब ये कि अब भी ज़रा भूलें तो करते हैं और करते रहेंगे। हम मासूम नहीं है, नबी तो है नहीं, नबी मासूम होता है, फरिश्ते मासूम है, नबी मासूम है, हम तो मासूम नहीं है। लेकिन ये कि कोशिश करते रहें कि हमारी ऐसी भूलें ना हो जिससे कोई बज़न होकर हमसे चले। बाकी चारों तरफ मोर्चे लगे हुए हैं, हमसे छूटा तो हो सकता है कोई और कैचअप कर ले, अल्लाह ना करे तो दीन से ही चला जाए, अल्लाह ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। अब्दुल अज़ीज़ ये सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इमामा शरीफ की शरई लंबाई क्या है, और अगर कोई शरई लंबाई से कम बांधता है तो क्या सुन्नत अदा हो जाएगी? बहार शरीयत 3री जिल्द पेज नंबर 419 मिरकात शरह मिशकात में मज़कूर है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ 7 हाथ का और बड़ा इमामा 12 हाथ का था। तो बारिश में लिखा आगे बस इसी सुन्नत के मुताबिक इमामा रखे, इससे ज़्यादा बड़ा ना रखे। बाद लोग बहुत बड़े इमामे बांधते हैं, ऐसा ना करें कि सुन्नत के ख़िलाफ़ है। मारवाड़ के इलाके में बहुत से लोग पगड़ियाँ बांधते हैं जो बहुत कम चौड़ी होती हैं और 40-50 गज लंबी होती हैं। इस तरह की पगड़ियाँ मुसलमान ना बांधें। इसमें गैर मुस्लिम भी बांधते होंगे ना। मारवाड़ इंडिया का एक शहर है या सूबा है, पता नहीं, मारवाड़ी जिसको बोलते हैं। किसी और लफ्ज़ के साथ भी ये मशहूर है, लफ्ज़ बोलता नहीं, कि सारे वहाँ मुसलमान भी होंगे। तो पूरे थान लपेट लेते होंगे ना। 7 हाथ और 12 हाथ, हाँ, तो 7 हाथ में 10.5 इंच बढ़ेगा गज के हिसाब से। तो कितने मीटर हो ना ये हम बता दें ना। हाथ में तो सारे वैसे भी लोग नहीं समझेंगे हाथ क्या होता है। हाथ वैसे इन पैमाइश है, पहले ये होते थे, ये जो ये ना हाथ, ये ऊपर की बीच की उंगली सबसे ऊंची होती है ना, तो इसके सिरे से ये बिल्कुल स्ट्रेट करके इसके सिरे से लेकर ये कोहनी तक ये एक हाथ कहलाता है। अब ये कि सबके हाथ अपने अपने होते हैं, छोटे बड़े साइजें भी होती हैं लोगों की। तो यूँ गज मीटर ये ईजाद हुए हैं, तो ये अब ये चलते हैं। हमारे यहाँ नहीं गज नहीं चलता, अब मीटर चलता है। गज लिखा हुआ होता है पुराना किताबों में, लेकिन अब चलता मीटर में। अब ये इन सबको मतलब कौन तफसील करे, इनके हाशिए लिखे कि इसका इतना मीटर हुआ, तो आसानी हो जाएगी। लिख रहे हैं मीटर, गज मीटर आवाम में दुकानों पे चलते हैं गज। अच्छा अच्छा अच्छा। इमामे में सुन्नत यह है कि 2.5 गज से कम ना हो, न 6 गज से ज़्यादा। एक कौल ये भी फतह रज़विया शरीफ जिल्द 22 सफ़ा 186। तो 2.5 गज वही 5 हाथ वाला, हाँ, मगर 2.5 गज लिखा है। नहीं अगर गजा भी राइज है तो मदीना माशाअल्लाह। ये 5 गज का है, 5 हाथ का, 5 गज का है जो पहना आपने। अल्लाह, 6 गज की तो आला हज़रत ने इसमें इजाज़त दी हुई है। वही 6 गज तो 12 हाथ ही हुए जो बारिश शरीफ में। मैंने और भी हैं इसमें, अखबार फतह रज़विया में ही है, और भी कुछ बड़े की गुंजाइश है इसमें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये भी है कि रुमाल हो जैसे बड़ा सा, तब भी वो 3 पेच अगर हो जाए ना तब भी इमामा हो जाता है, 3 पेच, है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खुशबू एक खुशगवार एहसास है जो हमारी सूंघने की कुदरती हिस्स के जरिए महसूस होती है। वहीं इसके बरखिलाफ बदबू है जो इंसानी सूंघने वाली हिस्स तक पहुंचती है और एक नागवार एहसास देती है। खुशबू कई तरीकों से हासिल की जाती है। पौधों से हासिल होने वाली खुशबू जैसे फूल, गुलाब, लेवेंडर और पौधों के पत्ते वगैरह। दरख्तों से हासिल होने वाली खुशबू ऊद, लोबान वगैरह। जानवरों से हासिल होने वाली खुशबू जैसे कस्तूरी, मुश्क, अंबर वगैरह। मसनूई सिंथेटिक खुशबू ये ज्यादातर परफ्यूम में इस्तेमाल होती है और उनमें कुदरती अज्जा ना होने के बराबर होते हैं। अमीरा अहले सुन्नत से सवाल है कि हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कौन सी खुशबू पसंद थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से कौन कौन सी खुशबू का इस्तेमाल साबित है। अमीरा अहले सुन्नत खुशबू से मुताल्लिक शरई रहनुमाई भी फरमाएं कि अगर हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उसमें अक्सरियत अल्कोहल वाले होते हैं, क्या उससे नमाज अदा हो सकती है। आपसे एक और सवाल करना था कि कुछ लोग मुख्तलिफ खुशबुओं का शौक रखते हैं जो हजारों और कुछ परफ्यूम्स लाखों के भी आते हैं। क्या उन पर इतने पैसे खर्च करना इसराफ के जुमरे में आएगा, जबकि मुनासिब कीमत की खुशबुओं से भी काम चल सकता है और बगैर खुशबू के भी काम चल सकता है। हमारे प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशक इन दुनियावी खुशबुओं की हाजत न थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही निहायत खुशबूदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना पाक ऐसी खुशबू उसमें कि दुनिया में कहीं नहीं है, बल्कि इत्रे जन्नत में भी ऐसी खुशबू नहीं जैसी खुशबू नबी के पसीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी का शेर है। जहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाते वो रास्ते भी महक जाते, खुशबूदार हो जाते। इसके बावजूद भी हम गुलामों की तालीम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते और खुशबू को बहुत पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में खुशबू का तोहफा पेश किया जाता तो उसे वापस न करते, बल्कि फरमाते खुशबू का तोहफा रद्द मत करो क्योंकि ये जन्नत से निकली है। हवाला शमाइल मुहम्मदिया सफ़ात 346 हदीस नंबर 221। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ख़ास किस्म की खुशबू थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्क व अंबर की खुशबू इस्तेमाल फरमाते और मुश्क सर मुबारक के मुक़द्दस बालों में और दाढ़ी मुबारक में लगाते। हवाला वसाइलुल वसूल इला शमाइलिर रसूल बाब 5वां फसल खामिस 5वां बाब सफ़ा नंबर 37। तो यूँ मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू इस्तेमाल फरमाते, पसंद फरमाते थे। नफासत मिजाज शरीफ में सबसे ज़्यादा नफासत थी, यानी कि हर चीज़ में मतलब यानी कि पाकीज़गी, सफाई, बेहतरी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू भी एक बेहतर शे है, तो ये आपको पसंद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब ये कि हम खुशबू लगाएं, कौन सी लगाएं ये, तो अब ये कि असली खुशबू जो नहीं तो बहुत यानी कि समझो कि नायाब कह सकते हैं, नायाब नहीं कह सकते, कम याब कह सकते हैं, कब बहुत कम मिल सकती है। जो खुशबू खालिश कहकर देगा वो भी पता नहीं उसकी कहने की आदत खालिश है या नहीं है, क्या दे दे, तो यूँ बहुत मुश्किल है। अब तो केमिकली खुशबू होती है, तो अब केमिकली खुशबुओं से ही गुजारा है, लेकिन खुशबुओं के बाकायदा इन्हें के बनाई जाती हैं फूलों वगैरह से, और इसके भी ये जैसे कि आर्टिफिशियल शहद आता है ना, तो इस तरह ये पौधे वगैरह लगाते हैं और खस के पौधे लगाते हैं, खस इतनी ये मशहूर है। तो इस तरह हमारे यहाँ शायद खस की पैदावार नहीं है, बाहर मुल्कों से आता है शायद, बल्कि अगलब गुमान यही है, केमिकल उसके आते हैं तो यहाँ भी बना लेते होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि खुशबू खैर केमिकल की भी लगाई
तो चूँकि कपड़ों पे लगाते हैं तो इसलिए वो इसको नाजायज़ तो कोई भी नहीं कहता खुशबू केमिकल की। तो अब इसके कोई तिब्बी नुकसान तो हों तो मुझे पता नहीं है कि ये नाक में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। अब खुदा जाने वो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं या नहीं है, इसकी मालूमात नहीं है मुझे। तो चंद उलमा भी लगाते हैं, सब कोई लगाते हैं, कोई मना करता नहीं है इसको, तो इसलिए हम इसको नाजायज़ कहने से रहे ज़ाहिर। तो ये लगाएं भले आप खुशबू, और लगानी चाहिए। एक इंसानी मतलब यानी कि फितरत है कि लोगों को ये पसंद आती है, सवाब का काम है, इसको लगाना चाहिए। और ज़ाहिर नसीब अगर ये सोच कर के ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी, इस मुनासबत से दुरूद शरीफ पढ़े, खुशबू लगाए तो ये भी अच्छा है। अच्छा, अब ये परफ्यूम वैसे जनरल खुशबू को सेंट परफ्यूम कहते हैं। अल्कोहलिक परफ्यूम या अल्कोहलिक सेंट, जिसका ये सवाल किया इन्होंने, तो अल्कोहल में उलमा इख्तलाफ करते हैं। कुछ उलमा मना फरमाते हैं कि नाजायज़ है, हराम है, ये शराब है अल्कोहल, समझे। अच्छा, कुछ उलमा फरमाते हैं कि ये वो शराब नहीं है, तो इसलिए ये पाक है, हराम नहीं है। दवाओं में अल्कोहल से बचना मुश्किल, दवाएं सभी लोग तकरीबन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो स्प्रे पेंट होता है सब चीज़ों पे लगा होता है, मस्जिदों की दीवारों पे भी लगाते हैं। ये भी उन उलमा के नज़दीक पे नापाक है कि इसमें अल्कोहल नहीं मगर स्प्रिट होती है। स्प्रिट की बू मार के थिनर बनाते हैं, तो इस तरह कारों पे, स्कूटरों पे, सब पे यही लगा होता है। खैर, जिन्होंने दलाइल दिए उस जवाज़ का कि इसमें बिल्कुल उमूम बलवा है और अवाम खवास सब जिसमें मुब्तला हों, मगर ये उमूम बलवा की वजह से हुक्म शरीयत बयान करना सिर्फ उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। उलमा भी वो जो ये मखसूस उलमा होते हैं जो ये करते हैं, हर आलिम नहीं कर सकता, और ये मिलकर मुशावरत से ये मुफ्तियान किराम मसले को हल करते हैं। तो बहरहाल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवे के मुताबिक अल्कोहलिक सेंट जो है, अल्कोहलिक परफ्यूम, ये जायज़ है, लगा सकते हैं। अब चूँकि इसमें है इख्तिलाफ, तो ये जहाँ इख्तिलाफ हो ना, एक नाजायज़ कहते हैं, एक दोनों मोहतरम ग्रुप हैं, समझे, तो एक कहते हैं जायज़ है। तो इसमें तरजीह होती है कि नाजायज़ को तरजीह दी जाए कि इससे बचना बेहतर है। फजीलत लगाने में अब उस तरह की नहीं रहेगी, बचने में रहेगी कि नाजायज़ भी तो कह रहे हैं, तो इससे बचो। तो सेंट अगर कोई लगाता है तो ठीक है, गुनाह नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने फिर सेंट कह दिया। मुतलकन सेंट ये इत्र को बोलते हैं, खुशबुओं को बोलते हैं सेंट, परफ्यूम। अल्कोहलिक सेंट या अल्कोहलिक परफ्यूम, मसला इसमें है, मुतलकन सेंट में नहीं है या खुशबू में नहीं है। वो सब जायज़ मांगते हैं इसको, खुशबू को, चाहे वो केमिकली हो, जबकि वो नॉन अल्कोहलिक हो। जैसे लिखते भी बोतलों में फ्री फ्रॉम अल्कोहल लिखा होता है। अच्छा, कुछ लोग मुख्तलिफ खुशबुओं का शौक़ रखते हैं जो हज़ारों, और कुछ परफ्यूम्स लाखों के भी आते हैं। क्या इन पर इतने पैसे खर्च करना इसराफ के ज़ुमरे में आएगा? जबकि मुनासिब कीमत की खुशबुओं से भी काम चल सकता है। तो मैंने वो गिरे लगाई थी, और खुशबू न लगाने से भी काम चल सकता है। तो इसमें मतलब जौन सी भी खुशबू लगाए, जितनी भी कीमती खुशबू लगाए, अगर नीयत इसकी अच्छी है तो सवाब का भी हकदार होगा। और अगर दुनिया को दिखाने के लिए और लोगों पर अपना सिक्का जमाने के लिए, यार क्या खुशबू लगाई इसने, क्या खुशबू लगाता है, ये मज़ा आता है। अगर कोई बोलेगा ना साहब को, तो ये फिर मुर्दार की सरांड की तरह, सड़े हुए मुर्दे की तरह क़यामत में इसमें बदबू हो जाएगी, समझे। तो इसलिए वो इसमें कोई अच्छी नीयत हो तो दुनिया की सबसे कीमती खुशबू दुनियावी एतबार से अगर कोई लगाए, कोई हर्ज नहीं है। कोई ये नहीं है कि ये लगाए, इस कीमत की नहीं लगाए, वो नहीं लगाए, कम की लगाए, तो इसको इसराफ नहीं बोलते। इसराफ उसको बोलते हैं जिसमें दीन या दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो। इसमें खुशबू में दुनिया का फ़ायदा तो है ना, अच्छी से अच्छी खुशबू, तो उसमें बाज़ का स्टेमिना ज़्यादा होगा, रुकेगी ज़्यादा,
بعض खुशबू जल्दी उड़ जाती हैं, بعض में खुशबू में भली बहुत मालूम होती हैं, फिर मुख्तलिफ़ तरह की खुशबू लगाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है कि आपको गुलाब पसंद आता है, इनको चंबेली पसंद आती है, मुझको मोतिया पसंद आता है। मिसाल के तौर पर अब ये मोतिया, चंबेली और ये सब पुराने हो गए, अब तो तरह तरह की खुशबूयात इंग्लिश नाम वाले वो मिलते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। आप चावल खाते हैं, मैं रोटी खाता हूँ, ये डबल रोटी खाते हैं, सबके अपनी अपनी पसंद है ना। तो हज़ारों नेमतें अल्लाह ने अता कर दी, जो समझ में आता है खाओ। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, है ना, खाओ पियो मगर इसराफ मत करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी इस्लामी भाई आए हैं। बहावलपुर, KP के शेखुपुरा के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इसी तरह कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के लांढी, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी के इस्लामी भाई की तरकीब है शामिल होने की। इसी तरह सूबा सहरा मदीना की भी एक अच्छी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी मुज़ाकरे में शामिल हुई है, जिसमें मुराद मेमन टाउन, गडा, बहरिया टाउन, नूरियाबाद और थाना बुल्ला खान के इस्लामी भाई मौजूद हैं। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए काठमंडो नेपाल, मरकज़ी जामिअतुल मदीना चौ आसिदन शाह पंजाब, मरकज़ी जामिअतुल मदीना मंडी अहमदाबाद पंजाब, दोरा हदीस शरीफ जौहर टाउन लाहौर, जामिअतुल मदीना किलासवाला, मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरांवाला और जामिअतुल मदीना सियालकोट में जमा होकर देखने की इत्तिला है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारकल्लाह, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और 500 मरतबा दुरूद पाक लिखा। ऐ ख़त्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुमसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। बड़ी उम्मीदें सरकार एक तुम बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी कदीम हम भी जाएंगे। हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, अच्छी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका की विलाद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, समय करबला मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, आका इफ्तार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, 1500वां जश्न विलादत की धूम में बच्चे भी शामिल हैं हमारे साथ, बड़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये फ़ज़ाएँ हवाएँ सब हमारे साथ शामिल हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। और ये प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएँ, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें वालिदैन और घर के दीगर अफराद समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दूध पीता मदनी मुन्ना, चलें ये रिसाला पढ़ते हैं। हमेशा माँ बाप को राजी रखिए, इनका कहना मानिए। वाह, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। लेकिन ये बताएं कि पहले किसकी बात माननी चाहिए, अम्मी की या अब्बू की? मेरे ख्याल से तो अब्बू की बात माननी चाहिए, क्योंकि अब्बू का दर्जा बड़ा है और हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक की रिजा वालिद की रिजा में है। हाँ, लेकिन माँ की फजीलत भी कम नहीं है। हदीस पाक में है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। हदीस पाक में तो ये भी आया है कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, अगर वो राजी तो अल्लाह पाक भी राजी। लेकिन माँ भी किसी नेमत से कम नहीं है।
वो हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं। अगर अब्बू ना होते तो अम्मी खाने पीने की चीजें कहाँ से लाती? अब्बू दिन रात हमारे लिए मेहनत करके चीजें लाते हैं। मेहनत तो अम्मी भी करती हैं। अब्बू कमा कर लाते हैं तो अम्मी घर में मेहनत करके खाना बनाती हैं। अम्मी ना होती तो खाना कौन बना के देता? लेकिन अब्बू की मेहनत ज्यादा है। वो सर्दी हो या गर्मी हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अम्मी की खिदमत भी कुछ कम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो रातों को जागकर हमारा ख्याल अम्मी ही रखती हैं। अब्बू तो सो जाते हैं। अब्बू तो हमें पढ़ाते हैं, मदरसा और स्कूल भेजते हैं और हमारी फीसें भी देते हैं। तो अम्मी भी हमें तैयार करती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर हमें नाश्ता बना के देती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अब्बू हमारे लिए कुछ नहीं करते? अब्बू करते हैं, मगर अम्मी की कुर्बानियाँ बहुत ज्यादा हैं। मगर दोनों में से अफजल कौन है? अब्बू का दर्जा बड़ा है या अम्मी का? ये सवाल तो मुझे भी परेशान करने लगा है। चले परेशान ना हो, इस सवाल का जवाब अमीर अहले सुन्नत से मालूम करते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अम्मी अब्बू में से किसका दर्जा बड़ा है और हमें पहले किसकी बात माननी चाहिए, अम्मी की या अब्बू की? अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, दोनों का मर्तबा जो है ना ये अपनी अपनी जगह पर बहुत है। और इन ताज़ीम जो है ना ये वालिद की ज़्यादा की जाएगी, खिदमत अम्मी की, है ना, एक ही है। दूसरा है कि वालिदैन में से जो भी यानी कि दोनों है ना इनकी फरमाबरदारी की जाएगी, इताअत की जाएगी, एक की भी नाफरमानी नहीं की जाएगी। हाँ, जब वालिद और वालिदा दोनों किसी यानी मुतज़ाद काम का हुक्म दें तो अब वालिद की इताअत की जाएगी। मुतज़ाद क्या? एक दूसरे के उलट। मिसाल के तौर पर अब्बू कह रहे हैं बेटा प्याला यहाँ रख दो, अम्मी कहती नहीं इधर रख दो, तो अब अब्बू की मानी जाएगी। इधर का कह रहे हैं तो ये प्याला इधर रखा जाएगा, अम्मी के कहने पर इधर नहीं। ये मुतज़ाद हुक्म हुआ ना। ये फतवा रज़विया शरीफ, फतवा मुस्तफ़विया सफ़ा 457 के हवाले से ये अर्ज़ किया मैंने, मुतज़ाद वाला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें जो मिसाल दी ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो एक रिवायत के मुताबिक माँ और बाप दोनों के कदमों तले जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बना ले कि जन्नत इन दोनों के कदमों तले है। हवाला अत-तरग़ीब व तरहीब जिल्द 3 सफ़ा 267, हदीस नंबर 3656, दारा इब्न कसीर। माँ का तज़किरा बहुत है कदमों तले जन्नत का, लेकिन वालिद साहब के कदमों तले भी जन्नत है। यानी कदमों तले जन्नत है, कदम के नीचे माज़ल्ला जिस्मानी कदम फिज़िकली ये मुराद नहीं है, बल्कि यानी कि जिसकी भी खिदमत करेंगे है ना माँ बाप की, तो उनकी मतलब यानी कि खिदमत जो वो बाइस जन्नत, सबब दुखूल जन्नत, जन्नत में जाने का सबब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यहाँ एक सवाल ये अर्ज़ करूँगा कि जब वालिदैन में जुदाई हो जाती है तो ऐसी सूरत में बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई माँ की तरफ हो जाता है, कोई बाप की तरफ हो जाता है। तो जब वालिदैन में जुदाई हो जाए किसी भी वजह से, दोनों अलग हो जाएं, तो उस वक्त औलाद के लिए क्या आप मशवरा देंगे कि, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ वालिद के लिए और वालिद माँ के लिए बच्चों के जहनों में ख़राबी पैदा करते हैं, तो एक तो ये अमल कैसा, दूसरा बच्चों के इस हवाले से, बेटों को या बेटियों को इस हवाले से वालिदैन के लिए अपनी सोच क्या रखनी चाहिए? अब ये कि बाप बाप में जुदाई हो गई, खुदा न खास्ता तलाक की कोई सूरत बन गई, अभी अलग अलग हो गए, लेकिन न किसी इन औलाद में से न किसी का बाप ख़त्म हुआ न माँ ख़त्म हुई। बदस्तूर माँ भी है और बाप भी है, और दोनों की खिदमत, दोनों की इताअत, फरमा बरदारी उसी तरह वो रहेगी जो करनी है, ठीक है ना। और ये माँ बाप में से जो फौत होगा उसका तरका भी इन औलाद को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब ये कि एक तरफ हो जाना और बाप को अकेला डाल देना या बाप की साइड हो जाना ये कम होता है, माँ की साइड हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर, वो बाप को भगा देते हैं। तो ये करने गुनाह के काम है, बल्कि माँ मना भी करे ना तुम्हारे बाप से मिला तो मिले तो दूध माफ़ नहीं करूँगी, और ये नहीं माफ़, ये सब वैसे ही टक्के वाली धमकियाँ हैं। ये क्या दूध माफ़ नहीं करेगी? यहाँ ये हुक्म शरीयत के ख़िलाफ़ कर रही है कि ये औलाद को माँ से जुदा कर रही है, बाप से जुदा कर रही है, और ये गुनाहगार हो रही है। माँ ऐसा कहकर के अपने बाप से नहीं मिलना, या बाप कहता है कि अब तुम्हारी माँ से अब नहीं मिलना वगैरह,
या खाला से नहीं मिलना, तो ये बोलते हैं एक दूसरे बच्चों को, ये सिखाते हैं, ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाले काम है, जुदाई नहीं। जो जिसका हक है उसको मिलेगा, जो रिश्ता है उसके सिले रहमी उसकी वाजिब है, और क़त्अ रहमी रिश्ता तोड़ना ये हराम है, तोड़वाना भी हराम है, समझे। तो इस तरह मतलब हमारे माशरे में ये बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं ये दोनों के हैं, माँ की तरफ जाएंगे बाप की तरफ, दोनों की तरफ रहें। बाप को हाजत खिदमत की बात होती है, बिल्कुल खिदमत वाजिब रहेगी, करनी पड़ेगी। नान नफ़का के अगर वो मोहताज हैं रहने के या खाने पीने के, और ये औलाद इस काबिल है कि इसकी खिदमत कर सकेगी, तो इसको वाजिब होगा कि इसको दे अपने वालिद साहब को, और दुख ना पहुँचाए, दिल ना दुखाए। इसी तरह माँ के लिए वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। शहजाद अली शहजाद हैं, ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग गरीबी की वजह से घरों पर चरागा और झंडे ना लगा सकें तो ऐसे लोग मिलाद कैसे मनाएं? सुभान अल्लाह। खाते हैं कि नहीं? घर है, खाते हैं, फर्नीचर है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना। चलो अब बिल फर्ज पे लगा नहीं सकता, तो इसको किसने कह दिया कि झंडे लगा कर ही जश्न मिलाद मनेगा, इसके अलावा नहीं मनेगा? रोज़े रख लो, 12 दिन के रोज़े, खर्चा उल्टा बचेगा आपका। गरीब है ना, यूँ मिला लो। हमने रोज़ के 1500 दुरूशी पढ़ने की तरकीब दी है, इसमें कोई झंडे की ज़रूरत है, लाइटिंग की हाजत। दृश्य पढ़कर 1500वां जश्न विलादत मनाओ। तो ये वैसे ही लोग पूछते रहते हैं तरह तरह के सवाल भरा है सवाल क्या होता है। तो ये मतलब कोई तुक नहीं है, लाइटिंग और झंडे और ये जश्न विलादत का एक हिस्सा ज़रूर है, एक अंदाज है, मुसलमानों में राइज है, तो ये हम करते हैं और तो सवाब का काम है, अच्छी नीयत से करेंगे। तो नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है इसमें, जबकि इसको नाजायज़ ना समझते हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बेशक रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत की रात शब क़द्र से भी अफजल है, क्योंकि विलादत की रात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने की रात है, जबकि शब क़द्र सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को अता करदा रात है। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा मरहबा, आला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा 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 मरहबा। आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए। मरहबा 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 मरहबा। कट गई शाम जुल्मत सवेरा हुआ, कट गई शाम जुल्मत सवेरा हुआ, देखो तशरीफ लाए हैं खैरुल वरा, देखो तशरीफ लाए हैं खैरुल वरा, जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा, जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा, दो जहां मिलके पढ़ते हैं सल्ले अला। आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी आ गए। मरहबा 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 मरहबा। रहमतों की घटा घिर के छाने लगी,
رحمتوں کی گھٹا گر کے چھانے لگی، ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی، آ گئے آ گئے آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا مزہ آ رہا ہے روشنیاں دیکھ کر۔ اللہ ہمارے دل بھی روشن کر دے، ہماری قبریں بھی روشن کر دے۔ ایک وقت تھا جشن ولادت لوگ مناتے تھے تو اگر تھوڑا بہت بس 12ویں رات کو سجاوٹ ہو جاتی تھی، اب تو ماشاء اللہ 12 راتیں سجاوٹیں، کتنی سجاوٹیں آپ نے دیکھی کہ ابھی سے ماشاء اللہ تی سجاوٹیں کر لی۔ میں سوچ رہا تھا اس میں کتنی حکمتیں بھی ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں کی روزی بھی کھلی ہوگی، اس میں بتیاں بک رہی ہیں تو جھنڈے بک رہے ہیں تو کاریگر تو الیکٹریشین، سب کو روزی مل رہی ہے، سب کا کام بن رہا ہے، سب کے فوائد ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم ماہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گھرے، ہم ماہ میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گھرے، ساری گلیاں روشنی سے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم لے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈا لیتا ہے، جھنڈیاں لیتا ہے اور لائٹ لیتا ہے روشنی کے لیے، چراغاں کے لیے، تو آیا کیا یہ ثواب کا کام ہے نمبر ایک؟ اور پھر یہ کہ میرا خیال ہے شاید 400 روپیہ، 350 400 روپے میں اگر کوئی کوشش کرے تو جیسے ایک لڑی آتی ہے جس کے اندر تقریباً 12 جھنڈے ہوتے ہیں اور ایک جالر کی ڈبی آ جاتی ہے، تو اگر یہ لے لیں تو 350 400 روپے میں یہ سارا سامان آ جائے گا، اور یہ ایک بار ہے، پھر اتار کر اپنے گھر میں اگلے سال کے لیے بھی وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اتنا خرچہ اگر کوئی کر لے، 350 400 روپے کو بہت زیادہ خرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت زیادہ خرچہ ہے، تو اگر یہ کر لیں اور بچوں کو بھی اس پہ ترغیب ہو تو ایک بچوں میں، فیملی میں، خاندان میں ایک ذوق، شوق، عشق رسول کا بڑھنا اور یہ ساری عظمت و محبت کا آنا، تو کیا یہ خرچ بھی ہمیں ثواب دلائے گا
तो हर एक को फिर ये चाहे वो थोड़ा अगर नहीं भी कर सकता तो कम से कम इतना भी कर ले, तो उसकी घर की गैलरी पर अगर ये लग जाए तो रात की रोशनी में रात के अंधेरे में जगमग करती लाइटें बताएंगी कि ये किसका घर है, और दिन के उजाले में हिलता हुआ मिलादी झंडा दिखाएगा कि ये किसका घर है। तो ये खुशी अलग होगी। क्या फरमाते हैं आप? दुरुस्त फरमाते हैं। ऐसा करना हो ना यार तो कोई मसला ही नहीं है, जिसको करना हो ना, और अल्लाह तौफीक दे कि बस हम मतलब ये का ताल्लुक होता है इसका दिल से। दिल खुश है ना तो दिल खुश होता है तो आदमी नवाजता चला जाता है ना, बांटता रहता है सबको खुश खुश, मतलब यानी कि। और अगर दिल में अंदर कुछ मसला है ना तो फिर हजार बहाने सूझते हैं क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत के ताल्लुक से हमारे दिल में कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह हम भी सजाएंगे, हमारी आइंदा नस्लें भी सजाएंगी, इंशाअल्लाह जश्न विलादत की दुमें मचाएंगी इंशाअल्लाह। इससे कितना ईमान ताज़ा होता है, कितने दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे हैं, कितने रोज़े रखे जा रहे हैं, और कितनी मतलब यानी कि मैंने कहा कितनी लाखों को तो रोज़ियाँ मिल रही हैं जी हाँ। आजकल जश्न विलादत की तैयारियों के सिलसिले में। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, नो साइड इफ़ेक्ट। अब कोई बोले तो साइड इफ़ेक्ट, तो भी शादियों की सजावटें बंद करो, खतनाओं की सजावटें बंद करो, बहुत सारी सजावटें, अपनी दुकानों को सजाना बंद करो यार। खाली जश्न विलादत की सजावट में ही सब मतलब यानी लगता है कि इसराफ हो रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मस्जिद नबवी शरीफ सजी भी आपको पता है, ये इन लाइटों से नहीं है, इन लाइटों से नहीं, सारा साल सजी रहती है, सालों से सजी हुई आ रही है। कराची पूरा सजावट का खर्चा अगर एक पलड़े में रख भी दिया जाए तो शायद मस्जिद नबवी शरीफ के एक झूमर पर जो खर्चा हुआ है ना उसको भी, उसका भी वो नहीं है मुकाबले का। तो उस सजावट को कभी कुछ बोला जबान कट जाएगी, नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलना कभी भी। मैं आपको समझा रहा हूँ यार, सजावटें काबा शरीफ का खिलाफ। अब मज़ार शरीफ की कोई चादर चढ़ाए अकीदत में कोई वली का दीवाना तो बोले इसराफ। तो काबे शरीफ को जो चादर शरीफ पहनाई हुई है खिलाफ, हर साल ये पहनाई जाती है। आपको पता है सारा साल इस पे काम होता है, और सोने क्या उसमें यानी कि जो जिगजैग और जो भी इसकी लिखाई और कलमे शरीफ और जो भी लिखा हुआ है, इस सब सोने के तार से लिखा जाता है, गोल्ड से लिखा जाता है। कभी जहन में आया कि ये वली के मज़ार की ये 150 की चादर तो खल गई अपने को, और ये अरबों रुपए का जो हर साल गिलाफ लगाया जाता है, इसमें कोई किसी को वसवसा नहीं आता। व्हाट इज दिस, है क्या मुसीबत यार? तकलीफ किससे है भाई? साहिब मज़ार से है या मज़ार की चादर से है तकलीफ? सोचो नहीं, आदमी सोचे यार, हमें वसवसों की आप समझो काट कर रहा हूँ कि मतलब क्यों आखिर ऐसा सोचते हैं आप मत सोचो यार, आप सजावट करो, इंशाअल्लाह आपका दिल सज जाएगा इंशाअल्लाह, खुश दिली से और अल्लाह की रज़ा के लिए कि आप या अल्लाह मैं तेरे महबूब की आमद से मैं खुश हूँ, तो मैं इसलिए खुशी मना रहा हूँ। मतलब बहुत सारी इस तरह की मतलब बातें हैं कि जो अगर आदमी सोचे ना तो शायद इसकी अक्ल भी मतलब कबूल करने का, सब तो हो रहा है यार, तो आखिर ये 2-4 बल्ब लगे हुए हैं या 5-15 बल्ब लगे हुए हैं, इसमें क्या यार मसला है? अब 300 रुपये यार कोई रकम है यार, इसमें आपका घर सज रहा है, छोटा मोटा हिसाब हो रहा है ना सजावट का, तो ये क्या यार 300-400 रुपये जेब में रख कर जाओ तो ये होटल में भी आपको उम्दा खाना नहीं खा सकते आप, इतनी सी रकम है, इसमें घर सज रहा आपका यार। दाल भी महंगी है, रोटी भी महंगी हो गई, तो यानी कि मतलब एक टाइम का खाना भी अगर मतलब आप समझो कि फाका कर लिया और ये सजावट कर ली तो भी घर सज जाएगा अगर इतनी गुर्बत है। तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इसलिए मतलब सजावट करो यार, जितनी कर सकते हो करो, इंशाअल्लाह हमारी कब्रें सजेंगी, रोशनी होगी उसमें आका के सदक़े में इंशाअल्लाह। इन्नमल अमालु बिन्नियात। एक आलिम साहब ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की ख्वाब में, ये मुख्तलिफ़ किताबों में ये वाक़या लिखा हुआ है और बाहर सुबह बहारा में भी लिखा हुआ है, फतह रज़विया शरीफ में भी लिखा हुआ है। तो आलिम साहब ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और उस आलिम साहब ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी विलादत की खुशी करते हैं क्या आप उनसे खुश होते हैं?
फरमाया जो हमारी खुशी करता है हम उससे खुश होते हैं। ये बातें हमारी समझ में आती है कि बेशक मतलब ये नहीं कि अरे आपके लिए भी कोई तोहफा देगा, आपको सौगात देगा, आपको कोई है ना खूबसूरत चीज़ देगा तो आपको खुशी तो होगी ना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में जब हम ये सजावटें करेंगे तो ये क्यों खुश नहीं होंगे, इनका रब क्यों खुश नहीं होगा। कितनी इस्लाम की शान और शौकत का इसमें इज़हार है कि इन मुसलमानों को अपने महबूब की जश्न विलादत 1500 साल जिसको हो गए, ये अब तक खुशियाँ कर रहे, इतनी खुशी है तो ये महबूब से मोहब्बत ये कितनी करते होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी से। तो ये गैर मुस्लिमों को नहीं रौब पड़ता होगा। ऐसे वाक़यात भी हैं कि रोशनियाँ देखकर बाज़ मुसलमान होने का भी वाक़यात है कि मुसलमान हो गए कि इनको इतनी मोहब्बत है अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सच्चे लोग हैं कि न माल देखते हैं, न पैसे देखते हैं, न टाइम देखते हैं, इतना ही खर्चा कर रहे हैं, लुटा रहे महबूब के नाम पर, है ना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह एक शेर याद आ गया, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर औरतों ने जब देखा तो एकदम मबहूत हो गई देखकर, और इनके हाथ में लीमू या सेब दिया गया था कि जैसे ये पर्दा हटेगा यूसुफ अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे तो तुमने ये काटना है। तो इन्होंने देखा तो देखते रहेंगे, ये सासीन कभी देखा नहीं था। तो इन्होंने वो काटा सेब या जो भी लीमू, इसके बदले सबने उंगलियां काट दी अपनी, और ये उस मतलब होश नहीं था इनको उंगलियां कटने का, जैसे पता नहीं चला कट गई। तो हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, जना अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ भी एक मतलब काम है सोचने की बात है, हुस्न देखकर कटी तो उंगली कटी, यहाँ हुस्न देखकर नहीं सर कट रहे, नाम पर उंगली नहीं सर कट रहे, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने कोई शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहते हैं कि अगर कोई शख्स ज़िम्मेदार ना हो तो उसको ज़िम्मेदार बनाने के लिए एक काम करना चाहिए, और वो काम क्या है? कहते हैं कि उस नौजवान, उस शख्स को हथकड़ियाँ लगा देनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हथकड़ियाँ लगा देनी चाहिए मतलब जकड़ने वाले, कैद करने वाले, क्या है? असल में हथकड़ियाँ लगाने से कुछ और मुराद है। हथकड़ियाँ लगाने से मुराद जो है ना कि उस शख्स की शादी कर देनी चाहिए। तो क्या वाकई शादी के बाद गैर ज़िम्मेदार शख्स खुद ब खुद ज़िम्मेदार बन जाता है? ये तो हमारे शेख ही हमें बताएंगे। बाज़ नौजवान शादी के बाद भी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं करते, और ऐसे में ऐसी गैर ज़िम्मेदारी और गैर संजीदगी का मुज़ाहिरा करते हैं कि ना माँ बाप की परवाह, ना बीवी का एहसास, और ना ही घर की ज़िम्मेदारी का कोई शऊर। ऐसे में झगड़े, ज़िद, गुस्सा और बेअदबी मामूल बन जाती हैं। ऐसे में वालिदैन परेशान, बीवी बेचैन और ससुराल के लोग बदज़न हो जाते हैं।
کیا یہ رویہ درست ہے؟ اور ایسے نوجوانوں کو، ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے کہ شادی صرف خوشی کا نام ہی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا نام بھی ہے؟ پلیز شیخ، اب آپ ہی بتائیے اور سمجھائیے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، شادی کے بعد یہ جو ہتھکڑیاں دکھائی نا کہ واقعی یعنی کہ بندہ قید بعض صورتوں میں تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوں مطلب اس کا مطلب کہ ذمہ دار ہو جاتا ہے. تو ایک ذمہ داری تو اس پر یہ آتی ہے کہ آنے والی کے لیے نان نفقہ جو ہے اس پر واجب ہو گیا، روٹی کپڑا مکان جو ہے نا یہ اس پر واجب ہو گیا، اس کو فراہم کرنا ہے. الگ مکان دینا ضروری نہیں ہے، بس اس کو مکان دینا ہے، چاہے وہ اپنے والدین وغیرہ کے ساتھ رکھے، اس کو رہائش دینی ہے. اور جو مطلب ہے کہ جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو رہائش دینی ہے، اس کی جو حیثیت ہے اور جو نارمل مطلب اس کو دینا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. اب کمانے کی ذمہ داری بڑھ جائے گی ان مانو کر. اب وہ پہلے جو لاؤبالی پن تھا اب نہیں چلے گا، اب باہر کا مہمان گھر میں، اس کے ساتھ جو گھر میں جو اپنے کرتے تھے اب وہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ پھر باہر ڈنگ کے بچتے رہیں گے. یہ بھی ایک امکان بڑھ جاتا ہے. تو جو سمجھدار ہوگا تو اس سے بھی تھوڑا وہ اپنے آپ کو سیٹ کرے گا کہ اب میری پولیں کھلیں گی اگر میں نے اب گڑبڑ کی تو اس طرح بھی بعض لوگ واقعی شادیوں کے بعد سدھر جاتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں نا مارا ماری والے، یار یہ بھی شادیوں کے بعد بعض اوقات یہ سدھر جاتے ہیں. ان کی جو آتی ہے نا اس کو سنبھال لیتی ہے. اب وہ سمجھدار ہونی چاہیے. اب وہ بدماشن ہوئی تو پھر دونوں مل کر ہو سکتا کچھ اور کر ڈالیں. دیکھیں ایسا کم ہوتا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ سدھار تو آتی ہے، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. پھر اگر یہ نہیں مطلب ذمہ داری نبھاتا، خدمت جو بھی شریعت نے اس پر واجب کیا، کھانا پینا جو بھی میں نے تو وہ نہیں دیتا یا بلا وجہ کوئی سختیاں یا ظلم کرتا تو پھر جا کے میکے بیٹھ جاتی ہے. تو پھر یوں بعد میں اس میں مزید احساس ذمہ داری اور آئندہ نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ یہ بھی صورت بعض اوقات بنتی ہے. تو یہ کہ شادی کے بعد ذمہ داری آتی ہے، بڑھتی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری جو اس کے پر تھی تو وہ ختم نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن رکھیے گا. وہ بدستور باقی ہے، وہ نئی ذمہ داری اس پر آئی ہے. تو اب اس کو مزید اپنے معاملات میں سیریس ہونا ہے کہ ماں باپ کا نان نفقہ اگر اس پر پہلے واجب تھا، ایسی صورت تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اب بھی ہے وہی واجب ہے، یا پہلے اس کے پاس تھا اب نہیں ہے تو اب واجب ہے کہ اس کو دینا ہوگا. ماں باپ کا بالکل دل دکھنا نہیں چاہیے ناحق، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انشاءاللہ ذمہ داری ہو جائے گی، احساس ذمہ داری بڑھ جائے گا اور آپ کو سنجیدگی ملے گی تو آپ کا گھر بھی چلے گا، دنیا کا نظام بھی چلے گا اور آخرت کے بھی بہت سارے نقصانات سے آپ بچ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سورہ نور کی آیت نمبر 32 ترجمہ ہے کنز الایمان. اور نکاح کر دو اپنوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. تو صراط الجنان میں ہے اس کے تحت کہ نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ غنی میں نے مالدار، نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. تو آدمی تن دہی سے جان لڑا کے کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر
बेफिक्र व बेरोज़गार और दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद काम भी शुरू कर देते हैं और फजूलियात से भी बचना शुरू कर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत का एक रिसाला है जिसका नाम है सुन्नत निकाह, जिसे अमीर सुन्नत के निकाह वगैरह का जिक्र भी है और भी कई जिक्र हैं, और इसमें 2 अलग अलग मकतूब लेटर हैं, एक दूल्हा के नाम पर है और एक दुल्हन के नाम पर है। अगर शादी के मौके पर आपके यहाँ जब दावतनामा बनाते हैं और दावतनामा जब आप बांटते हैं, अगर उस दावतनामे में भी अगर ये सुन्नत निकाह रिसाला डाल दिया जाए और इस तरह ये नेकी की दावत भी आम होगी और दोनों घरों में ये जब रिसाले पहुँचेंगे, रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में रिसाले पहुँचे, जहाँ आपका दावतनामा पहुँच ही रहा है तो वहाँ एक रिसाला भी चला जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इससे भी घर में अमन पैदा करना, मोहब्बत पैदा करना और दोनों को किस तरह रहना है हुकूक़ ज़ौजैन के ताल्लुक़ से, और काफ़ी इसमें प्यारे प्यारे इसमें बातें लिखी हुई हैं और निकाह के ताल्लुक़ से भी बहुत ज़बरदस्त इसमें मवाद मौजूद है। तो अगर इसको भी आप ले लें और अपने दावतों में इसको लें, या जहाँ दावत में मेहमान आते हैं वहाँ पर आप तकसीम करें। वहाँ तो खैर दावत जब भी आपके यहाँ वलीमे की दावत हो, निकाह की दावत हो, शादी की दावत हो, अकीक़े की दावत हो, तो इसमें तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि वहाँ मक्ततुल मदीना का एक स्टॉल बस्ता लगाया जाए कि जब इतना खर्च कर ही रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे होते, तो चंद 1,000 रुपये का अगर ये स्टॉल लग जाएगा, मक्ततुल मदीना वाले आकर आपको स्टॉल लगा देंगे और वहाँ आप अपनी तरफ से मेहमानों में ये रिसाले तकसीम भी कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा। यही काम हमारे यहाँ इंतकाल हो जाता है, मौत मैयत हो जाती है, तो वहाँ भी इसाले सवाब के लिए इस तरह का स्टॉल लगा लें, बस्ता लगा लें, और आने वाले जो ताज़ियत करने के लिए आते हैं तो उनको भी ये रिसाले वगैरह तकसीम किए जा सकते हैं। इसके लिए मक्ततुल मदीना से रब्ता कर लें तो मक्ततुल मदीना वाले ये इंतज़ाम इंशाल्लाह कर देंगे और आपसे वो तय कर लेंगे कि इतने रुपए का आप उनको बता दीजिएगा कि भाई इतने रुपए के रिसाले वगैरह मेरे यहाँ दावत में मेहमानों के यहाँ हैं। तो ये दावत इस्लामी के जो मुबल्लिगीन इस्लामी भाई जो देख और सुन रहे हैं, आपको भी दावतें आती हैं, करीब से करीब जानने वालों की आती हैं, आपको भी लगता है कि इनको अगर मैं तरगीब दिला दूँ तो ये अपनी दावत में इन्होंने मतलब 25-30 लाख रुपए तो वैसे ही, या 8-10 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए अपनी दावत पे खर्च किए ही हैं, तो ये इतना एक स्टॉल लगा लेंगे। आपका एक कहना होगा और वो शायद आप ही को कह देंगे यार ठीक है आप लगवा दो ना, कोई मसला नहीं है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, या जो भी होगी, तो आप मक्ततुल मदीना से बात करके आप ये स्टॉल लगवा लें। अगर हर इस्लामी व इस्लामी बहन इसको ले लेना, यकीन माने इतने मेहमानों के हाथों में ये नेकी की दावत पहुँचेगी, मुख्तलिफ रिसाले वगैरह मक्ततुल मदीना आपको इंशाल्लाह तरकीब कर देगा, अल्लाह पाक की रहमत से हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे पहले भी ये होते रहे और अभी कहीं कहीं ये हो जाते हैं। मगर एक बार फिर याद आया तो मैंने कहा तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनों से मैं अर्ज़ कर दूं कि आपको जो दावत आती है और आपको लगता है कि इतना करीब है मैं इसको कहूँगा या कहूँगी तो ये कर लेगा, तो कर लेना चाहिए। खुद अपने घर की दावत में भी इसको पेश नज़र रखना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये तरगीब रिन्यू हो गई। पहले मुझे कार्डों में रिसाले आते थे, शादी कार्डों में, अब नहीं आते। पहले ये तरगीब थी हमारी। जी हाँ, ये भी तरगीब थी कि रिसाले कोई अगर शादी कार्ड का रुख बनाना है तो भी बन सकता है, उसमें वो छप सकता है, छपा हुआ पेपर लग सकता है। इसाले सवाब का चाहो तो पेपर हम छाप के लगा देंगे, सब इनको ऑफरें थी। तो पहले बस ये बार बार तरगीब की जरूरत है। मतलब अभी याद आया तो मैंने याद नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरगीब दी, इससे नेकी की दावत आम होगी, बहुत आम होती है। स्टॉल लग जाए यार, ये वाकई लाखों क्या बात तो करोड़ों रुपए खर्च करते होंगे। अगर कोई अच्छा सा स्टॉल लग जाए और ये रिसाले किताबें माशाल्लाह ये रख देंगे, बस मेहमान आता जाए उठा उठा के लेता जाए, या आप बांटने के लिए भी तैयार नहीं है तो ये मकतबतुल मदीना वाले बांटते भी रहेंगे। आपको कोई जहमत नहीं होगी, आप बस खाली पैसे दे दें, बाकी काम ये सारा ला के लगा देंगे, उठा लेंगे, ले जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इस्लामी बहनों की तरफ जहाँ इस्लामी बहनें ख़वातीन का जहाँ होता है खाने का, तो वहाँ हमारी इस्लामी बहनें होती हैं जिनका बस्ता होता है और उस बस्ते पर स्टॉल पर खड़ी भी इस्लामी बहनें होती हैं और इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों में होते हैं। तो ये भी क्योंकि दोनों तरफ ये तकसीम करने का भी हमारे यहाँ सिलसिला रहा है कि ख़वातीन में भी स्टॉल लग जाता है तो वो वहाँ पर बट रहा था, या इस्लामी भाई में लग जाता वो भी बट रहा होता है। माशाअल्लाह, जिनके यहाँ अनकरीब शादियाँ हो रही हैं, होता ना रबीउल अव्वल शरीफ में शादियाँ बहुत होती हैं, तो यार पैगामात भेजो ना, हमारा दिल भी खुश होगा और इसका भी सवाब मिलेगा आपको,
اور دوسروں کو ترغیب بھی ملے گی کہ ہم مطلب ہے بھلے آج نہیں بھیج سکتے تو کل بھیج دیں، ہم انشاءاللہ اس کی چلا دیں گے آپ کا۔ اچھا ابھی وہ میرے یہاں شادی ہو رہی ہے فلاں تاریخ کو یا 11ویں شریف کے مہینے میں، نیت کرتا ہوں کہ میں مکتبۃ المدینہ سے لگاؤں گا اسٹال۔ اب یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ سن رہے ہو اعلان آ جاوے کہ جو ان تاریخوں میں ہمارے کو بکنگ کرا لے گا، ہو سکتا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کی کوئی جو ہمارے ڈسکاؤنٹ کا جو چل رہا ہے تو ان کو ڈسکاؤنٹ مل جائے کیا تو بات ہے، شادیوں میں تو پھر آدمی اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیکھتے سب۔ اب اللہ کرے یہاں بھی یہاں مطلب خرچ کرنے میں دل کرے۔ آپ نے صحیح کہا کروڑوں کا، ایک بہت امیر نہیں کہہ سکتے اس کو زیادہ۔ وہی بات ہو رہی تھی تو کوئی شادی کا تذکرہ چلا تھا ان کے گھر میں، تو بھیا مطلب کہ 2-2.5 کروڑ پر نکل جائیں گے۔ بولا کیا 2-2.5 کروڑ یار، 2-2.5 کروڑ کی تھوڑی بات کرو گا تو وہ کتنے، مطلب اب 2-2.5 کروڑ نہیں، مطلب ایسا لگا میرے کو اس کی بات سے کہ کوئی 6-7 کروڑ روپے خرچ ہو جائیں گے ایک شادی پر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، تو بہت امیر آدمی ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا لگا کہ یہ شادی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے اور لاکھوں میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے بھی جیسا غیر، لیکن سب کو چاہیے اب چند ہزاروں روپے کا اسٹال لگائیں تب بھی لگ جائے گا، اس سے تھوڑا زیادہ کا لگائیں تب یہ مکتبۃ المدینہ سب ترقی فرمائیں۔ اور اس میں دوبارہ عرض کر دوں حضور، ہمارے مبلغین کو اس میں ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ جن کو دعوت آتی ہے اور وہ ترغیب دلا دے، ورنہ بعضوں کا جس کے گھر میں دعوت ہوتی ہے نا اس کی بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی، اور جب آپ کے گھر میں دعوت ہو تو پھر تو آپ کو لازمی طور پر یہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یعنی واقعی وہ اپنے الجھنوں میں ہوتا ہے تو تھوڑا آپ اس کو تعاون کریں گے نا کہ میں سارا کروا دوں گا۔ بعض وقت تعلقات ایسے ہوتے ہیں میں سارا کروا دوں گا، آپ اوکے کر دیں، ہاں کہہ دیں بس۔ ماشاءاللہ، یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو بھی مذہبی تقریب ہو، چاہے ایصال ثواب کی ہو، چاہے اس کی ہو، چاہے ختنہ کی ہو، چاہے عقیقے کی ہو، جب بھی مطلب آپ گیدرنگ کریں نا تو یہ تھوڑا اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ ہم کو یہ دینی کام، دینی لٹریچر لوگوں کے گھروں میں پہنچانا ہے۔ اس میں حضور مشورہ ایک اور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ناقص مشورہ ہے اس پہ۔ کیٹرنگ والے ہیں نا، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ایک سے کیٹرنگ والے ہیں، جی جی ایک سے کیٹرنگ والے جنہوں نے اپنے پاس باقاعدہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ پیکیج یہ پیکیج یہ پیکیج، تو آپ کیا کیا دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کیٹرنگ والے بھی اس میں کچھ نیکی کی دعوت کے تو وہ ترغیب رکھ لینا کہ ہم آپ کو یہ سارا تو تیار کر کے دیں گے، ڈیکوریشن سب ان کو کرنا ہوتا ہے۔ اب ان کو بھی بول دو گے نا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ 10-20 ہزار روپے 25 ہزار روپے کا اسٹال ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ لگوا دیں ہم، تو وہ آپ کو شاید منع بھی نہیں کرے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ویسے 10-25-50 لاکھ روپے کا کھانا کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو یہ کیٹرنگ والے اگر ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ماشاءاللہ ایک سے ایک کیٹرنگ والے عاشقان رسول ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی یار، اور شارٹ کٹ ہو جائے گا۔ بہت دور کی نکالی ہے آپ نے، کیٹرنگ والے ہیں اپنے پاس بالکل بہت ہیں، ایک نہیں ہے حضور، بہت ہیں، ایک سے ایک ہیں، ایک سے برابر ہے۔ اور یہ دنیا بھر کا نظام کرنا ہے، اس طرح خالی کراچی کی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ، تو اب یہ کہ کیٹرنگ والے بھی سامنے، مگر یہ اللہ کرے سنتے ہوں ہماری باتیں، ان تک پہنچائے کون یار، یہ سب تو سنتے نہیں ہوتے۔ بنائیں گے کوئی کلپ بنائیں گے شارٹ کر کے اور اس کو پہنچائیں گے۔ میں تو جتنی بھی ریسٹورنٹ والے ہوٹل والے ہیں نا، ان کو بھی مشورہ دوں کہ اپنے جو کاؤنٹر ہوتا ہے نا جہاں پر لوگ پیمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں بھی آپ رسالے کا مکتبۃ المدینہ کا رکھ لیں گے نا، اور جانے والے یہ لیتے ہوئے چلے جائیں گے کہ یہ لے جائیں، تو آپ کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت پھیلے گی۔ یعنی یہ مکتبۃ المدینہ کسی کا ذاتی نہیں ہے، دعوت اسلامی کا ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک شعبہ ہے، رسالے ہیں۔ آپ کو صرف تھوڑی سی اپنی کوشش کرنی ہے اور شاید آپ کے ذریعے گھر گھر جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی۔ ہم کون سا کمانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے کون سا اس میں کمیشن ہے، نیکی کی دعوت ہم کرنی ہے۔ مکتبۃ المدینہ تو چل ہی رہا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ واقعی بعض پہلے دکانداروں کی سنتے بھی، ہم نے ترغیبیں دلائی تھی نا، دکانوں پہ بھی رکھتے تھے باقاعدہ، باکس رکھتے تھے، باکس مکتبۃ المدینہ والے دیتے بھی تھے باکس، جی ہم نے بنوائے تھے باکس، یہ سب یار واپس رینیو کرنا ہے اس کو۔ آپ بہت اچھی طرح، آپ کا ذہن بہت اچھا ماشاءاللہ اس طرف گیا کیا۔ تو یہ اب یہ مکتبۃ المدینہ والوں تو خیر سن نہیں رہے ہوں گے اس وقت، کہیں سن بھی رہے ہوں گے، تو ان تک اب باقاعدہ پہنچانا پڑے گا یہ پیغام کہ اب اپنے کو یہ پھر یوں ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب۔ یہ ماشاءاللہ پبلک اسکول میرپور خاص، یہ اسکولوں میں لگتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ 1500واں جشن ولادت کی لگتا ہے شعبہ تعلیم نے دھومیں مچانے کی نیت کی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، کل تو حاجی عبدالوہاب تھے آج فجر میں، تو یہیں تھے، یہ اندرون سندھ کا دورے پر تھے، تو آج پہنچے ہوئے دوسری جگہ پر۔ ماشاءاللہ میرپور خاص چلے گئے، واہ اللہ برکت دے، اللہ آپ کی محنتیں کاوشیں قبول فرمائے، سب کی جو بھی آئیں یا اللہ پاک سب کو پکا نمازی بنا دے،
कभी भी कोई इनकी नमाज ना छूटे और सुन्नतों के सब पाबंद हो जाएं और सच्चे पक्के मतलब बाअमल मुसलमान, बा अखलाक, बा किरदार मुसलमान बन जाए और बेहिसाब इनको बख्श दे, इनके माँ बाप को भी बख्श दे, किसी का मोहताज ना कर, अब सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, रोजी रोजगार में भी खैर व बरकत दे। आमीन बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जितने भी हमारे तालीमी इदारे वाले ये कोशिशें कर रहे हैं और आइंदा भी ये करते रहेंगे, इन सब के हक में मेरी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। शोबा तालीम वालों, मज़ीद 1500वां जश्न विलादत की धुमें मचाने के लिए और फ़आल हो जाओ। तमाम शोबा तालीम, शोबा शोबीज़, शोबा स्पोर्ट्स, बदली से राब्ता और जितने भी हमारे निगरान और ज़िम्मेदारान हैं, सब के सब धुमें मचाएं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। और सुनने वालों ज़रा गौर से सुनो, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। नूर है ज़माना सुबह शब विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शब विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शब विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, आलम ने रंग बदला, सुबह शब विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके। चमका दिया नसीबा, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। रूहुल आमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल आमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा। तार शोड़ा फरेरा, तार शोड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। बांटा है तो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बांटा है तो जहां में तूने जिया का बाड़ा। दे दे हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या इस वक्त दरियाए चिनाब बहुत उरूज को पहुंच चुका है। मीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ख़ुसूसी दुआ फरमाएं कि दरिया से हम 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मुसलसल पानी की शरह बढ़ रही है और तकरीबन 4 से 5 फुट पानी है। और साथ मज़ीद ज़्यादा ख़तरे वाली बात यह है कि इसमें जहरीले सांप और इस तरह की जहरीली चीज़ें भी आ रही हैं। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ख़ुसूसी दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसी रहम फरमाए और ये सैलाब ख़त्म हो, क्योंकि मज़ीद ये हर लम्हा बढ़ रहा है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। दरियाए चिनाब, पंजाब में 5 दरिया ना, पंज आब, 5 पानी, तो अलिफ गिर जाता है पंजाब। तो जिम में वो अलिफ जो है वो जम हो जाता है, तो पंजाब, इसलिए पंजाब बोलते इसको। 5 मशहूर दरिया हैं, तो इसमें चिनाब, तो अल्लाह पाक रहम करे, चिनाब भी पुरसुकून रहे तो वो रावी भी पुरसुकून रहे। रावी का भी सुना था। तो ये वहाँ बारिशें वाकई तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला और सैलाब का ख़तरा, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा। अल्लाह करे कि ये सैलाब जो है जो पंजाब में आया नहीं है ना, अभी आने वाला है, यानी ख़तरा। पानी का बहाव ऊपर की तरफ वगैरह में आ भी गया है। बाज़ जगहों पर मसाइल, पानी का बहाव ऊपर चढ़ रहा है और प्रॉब्लम बढ़ रहा है इनके लिए। टेंशन तो बढ़ता है ना। जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ भी अल्लाह करे अमन कायम हो जाए, और जहाँ मतलब नहीं आया वहाँ ना आए, और अल्लाह करे कि सारा पानी जो समुंदर में चला जाए और आबादियों में न रहे। आबादियों में लोग बहुत तकलीफ में,
आ जाते हैं बेचारे, मवेशी भी इसमें बह जाते हैं, घर बह जाते हैं और खेतियाँ तबाह हो जाती हैं, बागात बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह पाक रहम करे। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, अब ये मज़ीद ये आजमाइशें भी हैं। अल्लाह करीम हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। सबको तौबा करनी चाहिए और जब भी कोई सी आफत आए, बारिश अगर इस तरह हो कि बारिश नुकसानदेह साबित होने लगे या सैलाबों से हलाकत का अंदेशा पैदा हो जाए तो अजान जो है ना वो देनी चाहिए। ये कोई भी इस तरह की वबा फैले, कोई बला है, आफत है, ये बारिश में लिखा है, मुस्तहब लिखा है। तो इन्हें के इन्हें वबा के ज़माने में भी अजान जो है ये मुस्तहब है। तो इस तरह के मौके पर जब भी कोई आफत आती है तो अजान से फ़ायदा होता है इससे। तो अगर ये हमारे जो पंजाब के इस्लामी भाई जहाँ ये मसाइल हैं, कराची भी पिछले दिनों ख़तरों से 2-4 हुआ था, तो अजानें देनी चाहिए। घरों में से अजान दें, आप गलियों में अजान दें। अल्लाह का नाम ही तो रहे ना, अल्लाह का नाम लेंगे, उसके महबूब का नाम लेंगे, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ये आफतें टलेंगी। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखिएगा नमाज के औकात में अजान ना दी जाए, लेकिन लोगों को गलत फहमी होगी कि नमाज की अजान है, ये अलग से नमाज के औकात के अलावा हो। इन्हें बाज़ औकात यानी कि आदमी बोलता बेवजू, तो बेवजू भी अजान देने में हरज नहीं है, बस किबले की तरफ मुँह करके अजान का जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अब अजान दें। वज़ू करके दें तो ज़रा और अच्छा है। बच्चे भी अजान दें जो अजान दे सकते हैं। औरतें आवाज़ से अजान नहीं दे सकती, दूसरे मर्द गैर मर्दों तक आवाज़ पहुँचेगी, तो इसलिए हम औरतों को तो मुतलकन इसको मना करते कि अजान ना दें, इस्लामी बहनें ना दें, इस्लामी भाई अजानें दें। अल्लाह करेगा अजानें चारों तरफ जब गूंजनी शुरू होंगी तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये आफत टलेगी इंशाअल्लाह करीम। माइक कोई शर्त नहीं है, मस्जिद कोई शर्त नहीं है, अब कहीं भी पाक जगह पर खड़े होकर अजान दे सकते हैं। घर में बालकोनी है तो उसके करीब खड़े होकर, या 4 दीवारी चारों तरफ से घर पैक है उसमें भी अजान दी जा सकती है। अब जहाँ जैसे आपको सहूलत हो, मुमकिन हो, अजान दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम इमरान है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। बोरिंग का पानी जो है वो कहीं देखा है गंदा भी आ रहा होता है और जग भी होती है उसके अंदर, तो बदबू भी आती है। क्या इससे वजू किया जा सकता है? बोरिंग का पानी बदबू होना, ये बदबू काहे की है ये होना कि अगर वाकई कन्फर्म है कि नजासत की वजह से पानी में बदबू पैदा हुई तो ये नापाक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पानी सड़ता है तब भी बदबू होती है, बाज़ और चीज़ों की बदबुएँ भी होती हैं। तो जब तक यकीनी मालूमात ना हो, कन्फर्म है ना, यकीनी, उस वक्त तक ये बोरिंग के पानी को या जिस तरह के भी पानी होते हैं इनको नापाक नहीं कह सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगस्त 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जब शक्कुल कमर का मौजज़ा पेश आया उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम किस पहाड़ पर तशरीफ फरमा थे? जवाब, जबले अबू कुबैस पर। सवाल नंबर 2, तहज्जुद गुजार को कब्र में एक खास इनाम मिलता है, बताइए वो क्या है? जवाब, उसका जिस्म सलामत रहता है। सवाल नंबर 3, राह रास्त से भटकने से पहले कारून बहुत अच्छा इंसान था, ये बताइए कि उस वक्त उसे किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, मुनव्वर। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: गुलाम इलियास अत्तारी इसकरदू बल्तिस्तान, मोहम्मद रियाज अत्तारी कराची, मोहम्मद रमजान अत्तारी बिन गुलाम जीलानी अत्तारी शोरकोट सिटी जिला झंग, आसिफ अली बिन खुदाबख्श घोटकी, उम्मे फैजान रजा अत्तारिया रावलपिंडी, बिनते अयाज अत्तारिया समड़ियाल, मोहम्मद असद अत्तारी गुजरावाला। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरान दादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम गुलाम इलियास अत्तारी इसकरदू बल्तिस्तान, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम अहमद अब्बासी अत्तारिया, मेरा ताल्लुक अब्तबाद तो। मेरा सवाल ये है कि असा सुनने जिले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत हुई 3 झंडे लाए गए। या सैयदी ये दस छोड़ो कि ये जो झंडे
पिछली उम्मतां बिच भी होने से अमीर अहले सुन्नत अहमद अब्बासी भाई ने अभी जो हिंद को ज़ुबान में सवाल किया है उसका खुलासा कुछ यूँ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर भी 3 झंडे नस्ब किए गए, तो क्या पिछली उम्मतों में भी झंडे हुआ करते थे? पिछली उम्मतों में भी झंडे तो होते थे। झंडा तो बहुत पुरानी इजाद है। झंडा जंग में खासकर वो निशान के एक माना झंडा भी है, वो अलम, आइन से अलम। अब भी हज में भी अरफात अल्लाह दिखाए आपको, मुज़दलिफ़ा मिना दिखाए, काफिले चलते वो कुछ ना कुछ उठाए हुए होते झंडे नुमा। बाज़ों का तो कुछ नहीं मिलता तो डंडी में बोतल डाल देते हैं, यानी ये पता चलेगा यार ये मेरा काफिला ये कहीं बिछड़ ना जाए, इस पर नजर रखे। क़यामत में भी लिवाउल हम्द यानी हम्द का झंडा, लिवा माने भी झंडा, ये सरकार का झंडा है, नबी का झंडा ऊंचा रहेगा, लिवाउल हम्द। क़यामत के दिन इसके छाँव में इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे और आका की पुष्ट पनाही में आ जाएंगे पीछे पीछे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है कि सवाल कर रहे हैं, अगर हमारे हक़ में कोई चीज़ या इंसान बेहतर नहीं है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए या उसका अपने हक़ में बेहतर होने की दुआएं मांगनी चाहिए? हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? कोई चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए या अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इसको हमारे हक़ में बेहतर बना दे? अब वो जैसी चीज़, अब शराब है भी हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, क्या दुआ करेंगे कि या अल्लाह से जान छुड़ा दे हमारी? तो जैसी चीज़ और हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, कन्फर्म है और वो हराम भी है, नापाक भी, तो उससे तो जान छुड़ानी ही पड़ेगी ना। औलाद है वो नाफरमान है, अब हमारे हक़ में ये बेहतर नहीं है, ये तय नहीं हो सकेगा ना, नेक बन जाएगा। आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह आपके लिए आखिरत का सरमाया बन जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त सवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हदीस पाक के मुताबिक कौन सी चीज़ अरब का ताज है? सवाल नंबर 2, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशबुएँ इस्तेमाल फरमाई इनमें से किसी एक का नाम बताइए। सवाल नंबर 3, जो शख्स बुरी नीयत मसलन दुनिया को दिखाने और लोगों पर सिक्का जमाने के लिए खुशबू लगाएगा तो वो खुशबू क़यामत के दिन कैसी बन जाएगी? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको तुम लोग देखो कि वो मस्जिदों की खिदमत व खबरगिरी करता रहता है तो तुम लोग उसके साहिब ईमान होने की शहादत दो और यकीन रखो कि बिलाशुबा उसके दिल में ईमान की रोशनी है। मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए। तुम मस्जिदें बनाओ जन्नत में घर पाओ, तुम मस्जिदें बनाओ जन्नत में घर पाओ, तुम मस्जिदें बनाओ मुसलसल अजर पाओ। मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ, मस्जिदें बनाओ, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए, जो मस्जिदें बनाए रहमत से हिस्सा पाए। तुम मस्जिदें बनाओ जन्नत में घर पाओ, तुम मस्जिदें बनाओ जन्नत में घर पाओ, तुम मस्जिदें बनाओ
मुसलसल अजर पाओ। आज हम फैसलाबाद में हाजिर हैं और हमारे हाजी शाहिद अफ्तारी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री के बाहर ही एक मस्जिद का इंतजाम किया है और अमीर सुन्नत के फरमान पे जो 1500 बनाने का अमीर सुन्नत ने हुक्म फरमाया था, उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ संगे बुनियाद रखी गई है। इंशाअल्लाह आने वाले महीनों में इंशाअल्लाह उसका शानदार इफ्तिताह होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मस्जिदें बनाओ, जन्नत में घर बनाओ और कब्रें सजाओ। मस्जिद बनाएगा उसको जन्नत, मस्जिद बनाए जो उसको जन्नत में घर तो मिलेगा, फजीलत तो है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा। माशाअल्लाह सुभान। आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मीलाद का मौसम सुहाना है। बंदरा सोवा हमें मीलाद मनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में दावत इस्लामी 1500वां जश्न विलादत मना रही है। जब से ये ऐलान हुआ है, क्या महसूस करते हैं? बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी, हद से ज़्यादा खुशी हुई। हम लोग तो तैयारियां कर रहे हैं कब से। अल्लाह पाक ऐसी नेमत हर मुसलमान को, हर आशिक रसूल को, हर ईमान वाले को अल्लाह पाक ये दौलत नसीब फरमा दे। बड़े अच्छे अंदाज में मनाएंगे, घर में नियाज नजर करेंगे, महफिल बुलाएंगे, कुरान खानी कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस करते हैं और इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश के साथ जश्न जुलूस मनाएंगे इंशाअल्लाह। 1500 साल जश्न विलादत की खूब धूमधाम में तैयारियां हो रही है, झंडे खरीदे जा रहे हैं, लाइटों की सेटिंग हो रही है और काफ़ी जो है ना मतलब वो जोश व खरोश पाया जाता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे लिए ऐसे हूँ जैसे बाप अपने औलाद के लिए है। ईद मिलादुन नबी है, दिल बड़ा मसरूर है, हर तरफ है शादमानी, रल जो हम काफूर है। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा, उम्मी की आमद मरहबा, ज़ीशा की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, ज़ाहिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। बोलो ना मरहबा 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 या मुस्तफा। हो मुबारक अहले ईमान, ईद मिलादुन नबी, हो मुबारक अहले ईमान, ईद मिलादुन नबी। हो गई किस्मत तरक्शा, हो गई किस्मत तरक्शा, ईद मिलादुन नबी। मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा 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 या मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद
مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا 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 یا مصطفیٰ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس ذکر و مجلس خیر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی خیر پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.